सिलेबस में कवर, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं 19 टॉपिक्स उसको पढ़ना है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। प्लीज somebody confirm it। मेरी स्क्रीन, इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yeah, yes, Yes, sir. Your sir. screen is available, but your voice is not audible, sir. You are not audible. Okay, can you check the voice? Is it okay? Is it okay now? Hello, is it clear? Yes, sir. Clear. Okay, no problem. Guys, can we start the session, or do we need to wait for one more minute? Just more 5 minutes, bro. Okay, fine. Just go through the syllabus, guys. I think you must have gone through the syllabus, paper one and paper two. Many people are worried about this grammar, parts of speech, tenses, and everything. I will clear it everything. आज सब कुछ क्लियर कर देंगे कि हाउ टू अप्रोच इंग्लिश। हम इंग्लिश का सेशन ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम इंग्लिश ही फोकस क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके। आई थिंक इन कमिंग 50 to 1 hour, 50 minutes to 60 minutes, we will be clear with English subject. Okay, 30 by 30, how we should get with less time. 30, we have only 30 days or 35 days। बहुत सारे लोग ऐसे टॉपिक्स को लेके वरीड है जिसका वेटेज है ही नहीं, मतलब 1-2 मार्क्स का वेटेज है और उनको लेके वो टॉपिक को लेके वरीड है। तो आने वाले लाइक अभी सेशन जैसा आगे जाए बढ़ता जाएगा तो हम वी विल क्लियर इट आउट कि कौन से टॉपिक को हम फोकस करना है, कौन से टॉपिक को हमको थोड़ा बाद में पढ़ना है, जो कॉम्प्लेक्स है, इजी है। विल क्लियर इट अप एवरीथिंग, विल मेक इट इजी फॉर यू टुडे। सो फर्स्ट थिंग इज पेपर वन और पेपर टू का आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। पेपर वन की तैयारी और पेपर टू की तैयारी एक जैसे ही करना है, देयर इज नो मच डिफरेंस, सिर्फ 3 टॉपिक्स डिफरेंस है। एंड वो 3 टॉपिक्स भी आई एम हाईलाइटिंग दिस हियर। I hope my screen is visible. Visible. So these three. One second. I'll mark this: conjunction, antonyms, synonyms, and composition. These 3 topics only. The difference between paper one and paper two. Rest everything is same. Only 3 topics for paper one, guys. Paper one वालों को ये 3 टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। It's been 10 minutes. I think we should start the session. Okay, I think we are good to go. Fine. Thanks for joining the session, everyone. I know it's a bit odd time, but it's okay. So, first of all, let me introduce the institute, Hyderabad Institute of Civil Service Academy. Since past 3 years, we have been working and we have been providing quality education for especially Muslim community people. Okay. So, since 3 years, we have been coaching UPSC Civil Services and TSPSC exams and other central government exams like SSC, CGL, those kind of exams we are teaching. Mother, take care of this mute. Somebody speaking. Okay, fine. Sorry for the disturbance. Please, I request everyone to please mute mute your speak. Oh, thank you. So this is all about Hyderabad Institute of Civil Services Academy. In Uh, Bro, unmute yourself. Actually, I muted here everyone, so unable to hear your voice. Yeah. oh, okay, okay, fine. I'm able now. Is it okay?
Yeah, Is no, it okay? it's Okay, fine. fine. So let me introduce our institute. Let me introduce our institute first, Hyderabad Institute of Civil Service Academy. So since 3 years, we have been coaching Muslim community people to help them to crack government exams. Okay, हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, ताकि हमारा जो पार्टिसिपेशन का हिस्सा है गवर्नमेंट जॉब्स में उसको बढ़ाने के लिए वी आर फोकस्ड. Since 3 years, we are giving coaching to top government exams like UPSC and USPSC, other state government exams as well. So now currently we are focused more on PS State, and the main reason behind that is बहुत सारे लोग अपने कम्युनिटी में टेट एग्जाम में आई थिंक दे आर फेल टू क्रैक एग्जाम. मतलब 80 मार्क्स है, 150 को 80 स्कोर करना है, स्टिल वो लोग पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर नहीं कर पा रहे. सो आई डोंट नो लाइक प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है. सो somebody requested us our institute की टेट वालों को थोड़ा क्वालिफाई करने की अगर आप इनिशिएटिव लेते तो इट वुड बी बेटर. सो वी टेक दैट इनपुट, और हम पहला सेशन हम लोग इंग्लिश पे कर रहे हैं कि इंग्लिश में 30/30 कैसे ला सकते हैं. सो दैट इज द मेन थिंग. सो बिफोर दैट, इंग्लिश से पहले विल स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है 2023 में जो टेट हुआ था, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना पास परसेंटेज है, पहले एक बार हम लोग उस पर देख लेंगे. सो 20 हियर आपको स्क्रीन पे दिखाया होगा लाइक 2023 में पेपर 2 में 58% क्वालिफिकेशन रेट है. मतलब 100 मेंबर्स एग्जाम लिखे तो 58 मेंबर्स पास करे. पेपर 2 की बात है. सो इन पेपर 1 32 मेंबर्स ओनली पास. 100 मेंबर्स पेपर 1 का एग्जाम दिए तो ओनली 32 मेंबर्स पास हुए. सो ये सिनारियो चेंज हो सकता है अभी ये टेट में. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर 1 हमेशा टफ आए. तो इस बार पेपर 2 भी टफ कर सकता. और जितने भी रिस्पॉन्सेस आपसे रिसीव हुए, तो मेजोरिटी ऑफ 60% लोग हैं ना पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं. अभी जो हमारे वेबिनार में जो भी ज्वाइन करे उसमें पेपर 2 की तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं. तो मे बी लास्ट टाइम पेपर 2 ईजी था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर 2 इस बार भी ईजी रह सकता. देर इज नो हार्ड एंड रूल फॉर दैट. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि पेपर 2 इस बार टफ होने वाला है कंपेयर टू पेपर 1. तो लास्ट ईयर का पास परसेंटेज पेपर 1 का बहुत ही कम है, 32 मेंबर्स ही क्वालिफाई कर सके, राइट. एंड अभी इस बार टेट में थोड़ा नया रूल, यू नो दैट कि पेपर 1 सिर्फ वो लोग लिख सकते हैं जिसके पास बीएड है. तो इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. बीएड वाले नॉट एलिजिबल है पेपर 1 लिखने के लिए. तो आई थिंक जो सिर्फ पेपर 1 लिख रहे हैं, आई थिंक उनके लिए दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस. ओके, तो 150 में हमको 140, 130, 120 नहीं लाना है. हमको सिर्फ 80 पास करना है और बीएससी में बैठना है, राइट. दैट इज आवर फर्स्ट मोटिव, राइट. हर किसी को टेट 80 पार होना है, या जिसको भी 80, 90, 100 आए तो उनको और थोड़े मार्क्स इंप्रूव करके बीएससी में हमको थोड़ा कॉम्पिटिशन से अहेड होना है. दैट इज द मेन थिंग, राइट. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश पे क्यों फोकस कर रहे हैं. तो विल अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इंग्लिश ही क्यों. क्योंकि अभी मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब्जेक्ट डीप है. फोर्थ मतलब पूरे टेक्स्ट बुक के सवाल करना रहता, और जो टेक्स्ट बुक में सवाल है एग्जैक्टली वो सवाल नहीं आ रहे पैटर्न में, थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन को पूछा जा रहा. एंड मैथ्स है ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. इवन साइंस भी, अभी जो भी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साइंस टीचर बनने के लिए, तो उनके लिए सोशल स्टडीज, साइंस, बायोलॉजी, हर फिजिक्स, हर चीज पढ़ना पड़ता, मैथ्स एंड फिजिक्स. सो बहुत ज़्यादा पढ़े तो थोड़े मार्क्स आ रहे, राइट. लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप कम पढ़ना है. मतलब कितने टॉपिक्स है पेपर 1 में, कितने टॉपिक्स है, सिर्फ 16 टॉपिक्स है. सिर्फ 16 टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे तो आपको 30 मार्क्स आने के चांसेस है. पेपर 2 में 19 टॉपिक्स अगर पढ़ लेंगे हम, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा लाइक पेपर 1 में 16 टॉपिक्स है, पेपर 2 में 20 टॉपिक्स है. सिर्फ इतने टॉपिक्स, मतलब मैक्सिमम 20 टॉपिक्स कवर करने से हम 30 मार्क्स स्कोर करते हैं. और 30 मार्क्स पेपर 1 में, पेपर 2 का भी 30 मार्क्स है. मतलब अगर आप 20 टॉपिक्स अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर हो गए तो आपको 60 मार्क्स, पेपर 1 में 30, पेपर 2 में 30, दोनों में 30 मार्क्स आने के चांसेस है. तो दैट इज वाई इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो टेट का रिजल्ट डिसाइड करने वाला फैक्टर वो है. तो हमेशा हमको ज्यादा पढ़ के कम मार्क्स लाने से बेहतर है कम पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लाना है, राइट. 20% मेहनत करना है हमको, 20% मेहनत करना है,
80% रिजल्ट लाना है, राइट? तो दैट इज अ स्मार्ट वर्क। हमको हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क, जितना टाइम लिमिट है 40 डेज का, जितना भी लिमिट है, उतने लिमिट में कितना कम पढ़ के कितना ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं। सो दैट वुड बी आवर टारगेट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती कहाँ करते हैं, जो साइंस का टीचर है तो वो लोग फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी, इस पे ये लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इंग्लिश ऑप्शनल लैंग्वेज है तो थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी इंग्लिश को देते हैं। ठीक, अरे मैं तो साइंस टीचर हूँ, मैं तो मैथ्स टीचर हूँ, मैं को इंग्लिश देखेंगे लास्ट 15-20 दिन में देखेंगे, ऐसा सोचते हैं। जो सोशल स्टडीज के टीचर्स है वो भी मेन सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते, इंग्लिश को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है फर्स्ट, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कम पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो हम इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, राइट? और आगे जाने में अभी सेशन में हम लोग बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, कैसे हम बिना क्वेश्चन को पढ़े हम आंसर कैसे कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज करके हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आपको बहुत क्लियर एंड क्रिस्प आपको सॉर्ट आउट करके देंगे कि हमको आपको कैसा प्रिपेयर करना है। फर्स्ट थिंग, आपको इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, राइट? क्योंकि इंग्लिश में कम टॉपिक्स है और ज्यादा मार्क्स करने का स्कोप है। 60 मार्क्स स्टेट में, लाइक पेपर 130, पेपर 230 का आंसर, राइट? ओके, तो इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है। आपको डीएससी में भी अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे भी इंग्लिश आपको फेस करना पड़ता। तो इट इज नॉट कि सिर्फ यहाँ पे टेट क्लियर कर ले तो बस डीएससी में, ऑब्वियसली वहां पे भी आपको इंग्लिश है, राइट? नेक्स्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे रहा है, जित आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बस काफी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से भी सब्जेक्ट से नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो आप इंग्लिश में इजीली हाई स्कोर कर सकते हैं। और आपका टेट के रिजल्ट जितने भी मैं रिस्पॉन्सेस आए आपके, जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 50 मार्क्स, 75, 78 आके रुक गए। मतलब बस 10, 15, 20 मार्क्स से वो लोगों का टेट रुक गया। अब वो बहुत डेंजरस है। मतलब एक थोड़ी बहुत मेहनत कर लिए, एक 10 मार्क्स की मेहनत कर लिए, तो वो लोग टेट क्लियर करके अभी डीएससी प्रिपेयर कर सकते थे। बट वो जो 10, 15, 20 मार्क्स का जो गैप है ना, वो इंग्लिश पूरा कर सकता है। ठीक है, जिसको भी इंग्लिश में 5, 8, 10, 12, बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी ऑफ लोगों को, 60-70% लोगों को, स्पेशली उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से जो लोग हैं, सो दे आर फेसिंग डिफरेंट, मतलब दे आर फेसिंग डिफिकल्ट, क्योंकि मे बी स्ट्रॉन्ग स्कूलिंग नहीं रहने की वजह से, या मे बी वेरियस रीजंस, दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा मकसद ये है कि ऐसे लोगों को जो बॉर्डर तक आके क्वालिफाई नहीं कर सक रहे, वो लोग हमारे टारगेट है। वो लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराना है, 85, 90, 100 वहां तक लेके जाना है। और जिसको 90 आए, तो हमारा टारगेट वो है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश में मेहनत कर लियो, तो वो 90 जो मार्क्स आए, वो लोगों को 100 पार, 105, 110। तो यहाँ पे किस सब्जेक्ट का चांस है? इंग्लिश। इंग्लिश इज द मेन, यू शुड मेक इंग्लिश एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। नाउ वी विल लुक एट द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस तो हर कोई देखते हैं, हर किसी के पास एक कॉपी अवेलेबल है, लेकिन सिलेबस को हम समझते नहीं। ठीक है, हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेस हमको आपसे आए कि सर हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते, हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रॉब्लम है, हमको एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस में प्रॉब्लम है। कौन बोले आपको एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस पढ़ने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के लिए कौन बोले आपको? वेटेज देखें आप कितना है उसका। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के 2008 से लेके 2023 टू लास्ट टेट का अब जितना भी आप पेपर्स उठाएंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आपको मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स एक या दो क्वेश्चन आए। तो एक या दो क्वेश्चन की वजह से आप क्यों इतना डीमोटिवेट हो रहे हैं? क्वेश्चन टैग्स हो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो, आप एक सिंपल चीज समझिए। तो इंग्लिश 30 मार्क्स का पेपर है, अपने पास 20 टॉपिक्स है, तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला एक टॉपिक से उठा के 6-7 क्वेश्चन दे सकता क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको सिलेबस में से हर टॉपिक कवर करना है। तो हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन भी अगर वो दिया, तो उसको 20 क्वेश्चन वहां बन जाते। तो इंग्लिश में आपको मालूम 24 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, 24 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 6 क्वेश्चन पेडागोगी के हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है,
राइट। तो आपको ये एनालाइज करना, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस, somebody's mic is on, can you please mute them? ओके। सो बहुत सारे लोग क्या है, सिलेबस कॉपी तो है उन लोगों के पास, सिलेबस में टेंसेस है, सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो बस पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा देते। यूट्यूब पे है से 1 आवर के वीडियोस पूरे देखते। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको वेटेज के हिसाब से जाना है, कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कितना मेहनत करें। मैं 3 दिन मेहनत करा एक्टिव एस पैसिव एस पे, मेरे को आया 1 क्वेश्चन, और वो भी घुमा फिरा के पूछ रहा, तो आपकी 3 दिन की मेहनत बेकार गई ना। तो हमको पहले वो टॉपिक्स चूज करना है जो हमको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो हम हमारी टीम बैठ के 2008 से लेके 2022 के पूरे पेपर्स हम एनालाइज करके हम एक कंक्लूजन पे आए कि हमको फर्स्ट पैराग्राफ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इससे हमको डायरेक्ट 5 मार्क्स के यहाँ से चांसेस है। मतलब दिस इज द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आर यू क्लियर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, आप जैसा 61 क्वेश्चन देखेंगे बुकलेट में, 61 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एक पैसेज दिखता। अब बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन वहीं चले जाता, इतना बड़ा पैसेज आपके सामने दिखता, डिफिकल्ट वोकैबुलरी, जिंदगी में कभी सुने ही नहीं ऐसे वर्ड्स उस पैसेज में इंक्लूडेड रहते, तो वहीं डिमोटिवेट हो जाता, राइट। और वेटेज भी बड़ा है, 5 मार्क्स का वेटेज है। हम आने वाले सेशंस में एक 5-10 मिनट्स में आपको मैं क्लियर एंड क्रिस्प बनाता हूँ, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। हम ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जहां हम पैसेज को पढ़ते भी नहीं, बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। विल सी, एक 10-15 मिनट्स में विल कम टू दैट ऑल्सो। तो हमको ये समझना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैक्सिमम वेटेज आ रहा हमको। सेकंड मैक्सिमम अभी 2022 और 2019 के पेपर में अगर हम एनालाइज करें तो थोड़ा बहुत ट्रेंड है ना, प्रीपोजिशन पे जा रहा। मतलब प्रीपोजिशन में कैसा, जैसा एक छोटा सा पैसेज दे रहा, वहां पे छोटे छोटे गैप्स दे रहा, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप गैप्स दे के प्रीपोजिशन फिल अप करो बोल रहा, ठीक है। तो वो एक ट्रेंड यहाँ पे देखा जा रहा, लाइक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एक एक प्रीपोजिशन पे एक, मैक्सिमम हम 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीपोजिशन पे, राइट। और एक ट्रेंड क्या देखा जा रहा, एक लाइक 2017 के पेपर में एक एरर करेक्शन, मतलब एक सेंटेंस देता उसमें एरर पहचानना रहता, राइट। हम 7th 8th 9th में ये बोर्ड क्वेश्चन रहते, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मैक्सिमम 5 मार्क्स के लाइक चांसेस है। मतलब कभी एरर करेक्शन के 5 मार्क्स दिया, तो कभी नेक्स्ट टेट में प्रीपोजिशन पे 5 मार्क्स था। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हर बार जब भी टेट हुआ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 मार्क्स तो है ही है। तो हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हाईएस्ट वेटेज है 5 मार्क्स का। और मैं आपको बताऊंगा कि बिना हमको ज्यादा मेहनत करे 5 आउट ऑफ 5 कैसा स्कोर कर सकते। अब बाकी के टॉपिक्स है, जैसे क्वेश्चन टैक्स है, बहुत छोटी सी टॉपिक है, इजीली 1 मार्क्स स्कोर कर सकते, ठीक है। ज्यादा हम क्या है, टेंसेस है, एक बार हम टेंसेस सीख लिए। टेंसेस कितने टोटल? 12 टेंसेस है। 12 टेंसेस सीखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 6 टेंसेस सीखना है। वो 6 टेंसेस कौन से है, क्या है, वी विल डिस्कस, ठीक है। पास्ट टेंस के दो, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के दो, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के दो, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। 6 टेंसेस इज मोर देन एनफ। 6 टेंसेस आपको करेक्ट आए, कैसा पढ़ना टेंसेस को, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, ईज कहाँ आता, ईज के बाद क्या आ रहा, वॉस कब आता, वॉस के बाद इंग आना चाहिए कि वॉस के बाद V2 आना चाहिए। ये छोटा सा बेसिक देख लियो तो हमको बहुत सारी जगह, जैसा एरर ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स में आपको बहुत हेल्पफुल होता। मतलब एक बार आप टेंसेस ध्यान से सीख लिए, कितना 2-3 घंटे में टेंसेस, इसको भी हम लोग क्रिस्प करके बोलेंगे आगे। अगर आप हमारे साथ 30 डेज जुड़े रहेंगे तो वी विल मेक इट एवरीथिंग ईजी फॉर यू। You don't need to worry about material. You don't need to worry about the PVQs. We don't need to worry about anything. We will take care of everything. Right? 30 days अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, we will make it crisp and clear it to you. Right? So we will move on. Syllabus को हमको ऐसा करना है कि वेटेज के हिसाब से हमको जाना है, ना कि टॉपिक वाइज। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक फर्स्ट दिया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं 2-3 घंटे स्पेंड कर रहे, 2-3 दिन लगा रहे, नो, डोंट डू इट, ठीक है। मैक्सिमम आपको कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पोजिशन, इस पे ज्यादा वेटेज आ रहा, तो इस पे हम पहले फोकस करेंगे। उसके बाद जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, रीशफलिंग ऑफ सेंटेंसेस है, एरर आइडेंटिफिकेशन है, वोकैबुलरी है, बहुत सारे लोग वोकैबुलरी पे डर रहे, ठीक है। डो वरी, हम एक एक से हम क्लियर करेंगे, राइट। सो दिस इज द सिलेबस, हमको ऐसा करना है।
पेडागोगी भी बहुत सारे लोग क्या है, पेडागोगी से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक 6 मार्क्स पेडागोगी से है, राइट। आप पेडागोगी के नोट्स देखो तो 100 पेजेस 200 पेजेस है। आप 6 मार्क्स के लिए आप कैसे 200 पेजेस पढ़ सकते हो? दैट इज द मेन क्वेश्चन। मतलब आपको मिल रहे कितना, 6 मार्क्स, तो आप कितना पढ़ रहे, 200 पेजेस पढ़ रहे हैं आप। 200 पेजेस याद रहते क्या? नहीं रहते, 2 दिन में भूल जाते, तो आपकी मेहनत पूरी बेकार। चलो पढ़े से क्वेश्चन आ रहे क्या डायरेक्ट बोलते, वो भी नहीं आ रहे। तो आपको पेडागोगी के 6 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है? आपको कॉमन सेंस से अटेम्प्ट करना है। आप अगर छोटा सा कॉमन सेंस यूज करें तो आपको पेडागोगी के 6 के 6 क्वेश्चंस आपको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कम मेहनत करें, आपको 200 पेजेस की बुकलेट को नहीं छीनना है। 200 पेजेस की बुकलेट पढ़ने से सिर्फ 6 मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट वर्थ। उसको हम शॉर्ट करना है, कॉमन सेंस ज्यादा यूज करना है। हम वो भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे कि कॉमन सेंस यूज करके कैसे हम पेडागोगी के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब तक हम क्या डिस्कस करें कि सिलेबस को हम हर टॉपिक पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, वेटेज के हिसाब से हमको जाना है, राइट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको यही मिल रहा है, राइट। ओके नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ना हार्डवर्क करते हैं, हमको ये समझना है कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे इंग्लिश का सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है तो अब मैं इंग्लिश में मास्टरी करती हूँ, मतलब मैं मास्टर बनना चाह रही हूँ। भाई हमको इंग्लिश का टीचर नहीं बनना है। जो भी इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे वो लोग सब्जेक्ट का हर बारीकी समझने की जरूरत है। बट कोई मैथ्स का टीचर बनना चाह रहा, कोई साइंस का टीचर बनना चाह रहा, उनको क्या जरूरत मैथ इंग्लिश में मास्टरी करने की, इंग्लिश में महारत हासिल करने की उनको क्या जरूरत है? तो उनको सिर्फ फोकस ये करना है कि 30 मार्क्स में मेरे को एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर करे तो बस, मेरे को इंग्लिश बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे को इंग्लिश में महारत हासिल करने की जरूरत, मेरा टारगेट नहीं है अभी 30 डेज में। 30 डेज में मेरे को टेट में इंग्लिश में 25 प्लस मार्क्स आना है, वो मेरा टारगेट है। मैथ्स के टीचर हो, उर्दू के टीचर हो, तेलुगु के टीचर हो, मेन फोकस वो होना चाहिए। उनको इंग्लिश में बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स करें कि सर हम 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। बिगेस्ट मिस्टेक, टेक्स्ट बुक आप पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक कितने पढ़ेंगे, इतने 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको 2-3 महीने निकल जाएंगे, और उसमें से कोई प्रोडक्टिव चीज भी नहीं है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चीज जो नहीं करना है कि हमको इंग्लिश में मास्टरी नहीं करना है। इंग्लिश के हर चीज एक्टिव पासिव है बोले तो एक्टिव पासिव के हर एक रूल, हर एक क्वेश्चन, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। इतना नहीं करना है, राइट, इतना नहीं करना है आपको। क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ऑप्शंस है आपके सामने, मतलब आंसर आपके सामने है। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन का आंसर पहचानना है, राइट। हाँ, तो पहचानने के लिए हमको छोटे छोटे सिंपल सिंपल ट्रिक्स यूज करके पहचान लेना है, राइट। अभी ऑप्शन 4 ऑप्शन देने वाला कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलती देता, कुछ ना कुछ मिस्टेक देता। वो मिस्टेक को हम आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करना है। हम आगे भी देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज करके हमको ऑप्शंस कैसे निकाल सकते हैं, राइट। और एक चीज बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज, वो सर बोले कि ये नोट्स अच्छी है, वो पब्लिशर की नोट्स अच्छी है, इसमें से क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर, उसमें से क्वेश्चंस आए, वो कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, ये कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं। नहीं करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज पे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, गुड एनफ। एक एक इंग्लिश मटेरियल में देखा 300 पेजेस 250 पेजेस, बहुत सारे, उसमें 10 साल के प्रीवियस स्टेट पेपर्स इंक्लूड करे। ये पूरा मार्केट टेक्निक है, इस पे आपको मल्टीपल रिसोर्सेज पे आप नहीं जाना है। वो टेक्स्ट बुक अच्छी है, ये मटेरियल नहीं करना है। आपको मटेरियल है ना शॉर्ट रखना है, राइट। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सेकंड, टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करना है। इससे पहले मैं बोला अभी 2 मिनट्स पहले कि टेक्स्ट बुक रीडिंग, इंग्लिश टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक रीडिंग आपको नहीं करना है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक रीडिंग सिर्फ वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए जरूरी है, लेकिन वो भी हम आपके लिए एवरी डे 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 मीनिंग्स हम आपको शेयर करेंगे। अगर आप 30 डेज हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो वी विल मेक इट क्लियर फॉर यू। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वी विल रीड इट फॉर यू। हम लोग 4th से लेके 10th तक जितने भी टेक्स्ट बुक में वोकैबुलरी है, वी विल एक जगह इकट्ठा करके आपको थोड़ा थोड़ा डेली 5 डेली 5 ऐसा दे देंगे, राइट। वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग वरीड ग्रामर पे है, लाइक ग्रामर नहीं आता, टेंसेस नहीं आता। एज इट सेड कि जितना वेटेज है उतना ही पढ़ो, जितना वेटेज है उतना ही फोकस करो, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंग्लिश में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। हमको मार्क्स होना है, महारत नहीं।
राइट। हमको मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हमको टेट 80 प्लस क्रॉस करना इज आवर टारगेट, इंग्लिश में फ्लुएंट बात करना इज नॉट आवर टारगेट, राइट। इंग्लिश में फ्लुएंस, मेरे को ग्रामर का हर रूल मालूम, नॉट नेसेसरी, आपको मार्क्स होना है, राइट। So this thing you need to keep it mind that you don't need to master in English to score good marks, right? We need marks, not mastery. Okay, vocabulary और comprehension passage पे बहुत सारे लोगों को डाउट है, we will clear it up, ठीक है, ज्यादा वरी नहीं करना है, ठीक है। अभी हमको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, चलो ये सब चीजें लोग गलती कर रहे हैं, अभी हमको स्मार्ट वर्क कैसा करना है, राइट। पहले हमको लिमिट रिसोर्स करना है, हमको छोटी सी नोट्स रखना है, राइट। एग्जाम के सामने अगर आपको इंग्लिश का रिवीजन करना है तो आप कितना 200 पेजेस की जो मटेरियल है आप कितना बोल के उसको रिवाइज करेंगे। तो हम आपके लिए एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल टेंसेस है, टेंसेस पे हम आपको 3 पेजेस का नोट, फर्स्ट पेज पे कॉन्सेप्ट रहेगा, सेकंड पेज पे आप रहेंगे, ठीक है, थर्ड पेज पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, राइट। एग्जाम में पूछे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अटैच करेंगे। तो ईच टॉपिक पे 3 क्वेश्चन, हमको कितने टॉपिक्स है इंग्लिश में, 20 टॉपिक्स है, 20 टॉपिक्स पे ईच टॉपिक पे 3 पेजेस, मतलब 60 पेजेस के ज्यादा आपको नोट्स नहीं रहना चाहिए मटेरियल। जितना हम आपको एक स्मार्ट वे बताना चाह रहे हैं, तो 20 टॉपिक्स है इंग्लिश के, 20 टॉपिक, एक एक टॉपिक पे 3 पेजेस की नोट्स, खत्म, इससे ज्यादा नोट्स बनाए नहीं। इससे पहले वो इंग्लिश में मास्टर वही बनना है हमको, राइट। एक फर्स्ट पेज पे क्या है, कॉन्सेप्ट की, क्या कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तीसरे पेज पे आपको यह रहना कि पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर एक्टिव पैसिव पे क्या पूछे या वो पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन पूछे, बस। एक टॉपिक पे 3 पेजेस, 20 टॉपिक से 60 पेजेस से ज्यादा आपको नोट्स जाना ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट। नेक्स्ट, जैसा बोला हमको इंग्लिश में मास्टरी नहीं बनना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो बोले तो 2011 का पेपर उठा देते, 2016 का पेपर उठा लेते, फर्स्ट से लेते, भाई आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है, टॉपिक्स आप 20 टॉपिक्स आप इंग्लिश के जो सिलेबस में दिए वो प्रिपेयर ही नहीं हुए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा उठा सकते। तो जब आप 20 टॉपिक्स पे, somebody speaking, please keep them in mute. ओके, 20 टॉपिक्स है, 20 टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करना है, मैं बोलता हूँ जैसा टॉपिक पढ़े वो टॉपिक पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक है इमीडिएटली करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा इंग्लिश एक बार सिलेबस हो जाने तो एग्जाम से 2 दिन पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठती हूँ, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आप फर्स्ट डे पढ़े से 20 डेज के बाद भूल ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा आज फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच आप सीख लिए, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच सीख लियो तो 2008 से लेके 2022 तक जितने भी टेट पेपर्स है उसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के जितने भी क्वेश्चन है आपको एक ही दिन करना है, एक ही टाइम करना है। आई होप इट इज क्लियर। एक टॉपिक आप सीख लिए, वो टॉपिक पे पीवाईक्यूज पूरे एक साथ ही करना है, एक ही साथ करना है, ठीक है। और हर दिन हर टॉपिक पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपर करना। फॉर एग्जांपल आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करे से दिन पूरे टेट के जितने भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो पूरा निकाल के पूरा प्रैक्टिस करना है, वैसे आपको हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, राइट। नेक्स्ट, और एक स्मार्ट वर्क क्या है, हमको आंसर देना नहीं है, हमको क्वेश्चन स्क्रिप्ट में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते ताकि आपको आंसर बनाने की जरूरत पड़े। आपको आंसर बनाना नहीं है, 4 ऑप्शंस आपके सामने है, उसको पहचानना है, राइट। पहचानने के हमारे पास लाइक वी हैव 3 टेक्निक्स, इससे भी ज्यादा टेक्निक्स है, लेकिन फिलहाल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू 3 टॉपिक्स है जहां पे आप जो सही ऑप्शन है उसको पहचान सकते हैं। फर्स्ट थिंग, एलिमिनेशन मेथड, मतलब क्वेश्चन देने वाला कुछ तो एक गलती छोड़ता ऑप्शंस में जिसकी वजह से वो आंसर करेक्ट रॉन्ग हो जाता, राइट। तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके, सर ये टेक्निक क्या है, कैसा यूज करते हैं, हम आगे एग्जांपल्स लेके हम इसको समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि एक टेक्निक है एलिमिनेशन टेक्निक, मतलब रॉन्ग आंसर को हम पहचान के उसको निकालना है, सही आंसर। अभी फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, हम फोर्थ ऑप्शन को निकालेंगे, थर्ड ऑप्शन को निकालेंगे, सेकंड ऑप्शन को निकालेंगे। जब ये 3 ऑप्शन गलत होंगे तो सही आंसर क्या होगा, 1 ही होगा ना ऑब्वियसली। तो वो एलिमिनेशन टेक्निक है, राइट। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे अभी सेशन में, 5 मिनट्स आप जुड़े रहिए, हम इस पे भी एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बोलेंगे। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंसेस। एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस मतलब ऑप्शंस में कभी भी याद रखो, कोई भी एग्जाम में एग्जामिनर एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस देता है, जैसे कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसा ओनली या फिर
ऐसे कुछ एक्सट्रीम एलोन ओनली, मतलब सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ यही मेथड करेक्ट है, सिर्फ ये एक ही करेक्ट है, ऐसे वर्ड्स रहते हैं, इसको एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। तो ये जब भी आपको ऑप्शंस में दिखेंगे, वो 90% चांस रहता कि वो ऑप्शन गलत हो सकता। 100% नहीं, 90% चांस है कि एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स जो भी ऑप्शन में दिए गए आपके, वो आंसर गलत हो सकता। राइट। नेक्स्ट टेक्निक क्या है? नेक्स्ट लुक अलाइक टेक्निक। लुक अलाइक टेक्निक मतलब एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के चक्कर में आपका काम और आसान कर देता। मतलब आपको कंफ्यूज करने एक ही जैसे ऑप्शंस देता, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन दो एक ही जैसे दिखते, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 अलग दिखते। तो हम क्या समझते हैं, इन कंफ्यूज करने के लिए एक दो सेम जैसा दिखता है, लेकिन 90% चांस है कि जो भी सेम दिखने वाले आंसर से, ऑप्शंस में जो भी सेम दिखने वाले आंसर से ना, 90% चांस है कि वो दो में ही आंसर है। ठीक है। राइट। अब हम प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स लेके कुछ करेंगे। राइट। ये जो भी हम टेक्निक सीखे, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे सीखेंगे। अभी देखिए, आप स्क्रीन पे कुछ पैसेज दिया हुआ है। ठीक है। ऑलमोस्ट इसको पढ़ने में ही अपने को 5-10 मिनट्स निकल जाते हैं। राइट। हमको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहली बात। राइट। जरूरत पड़ी, ज्यादा ही जरूरत है, पैसेज पढ़ना कंपलसरी है, नहीं तो ये आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, तब हमको पैसेज पढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसेज को देख के डरना नहीं है, पैसेज को पढ़ना भी नहीं है। पैसेज में जो भी टफ वोकैबुलरी है उसको देख के बिल्कुल टेंशन लेना। राइट। क्योंकि एग्जामिनर आपको डराना चाहता, टफ वोकैबुलरी देख के, बहुत सारे वर्ड्स दे के आपको वहीं तो अपना स्ट्रांग बनना है। राइट। अभी ये पैसेज दिया, इसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिया। राइट। हम इसको बिना पैसेज पढ़े अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैलोरीज बिकम स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज फैट। देखो, हमको क्वेश्चन को थोड़ा इजी समझना है। क्वेश्चन में भी अगर कुछ टफ वोकैबुलरी है तो हमको उसको इग्नोर करना है, मोटा मोटा समझना है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। राइट। तो इतना समझो, द कैलोरीज बिकम स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज फैट, मतलब हमारे बॉडी में फैट स्टोर हुआ। स्टोर कब होता? व्हेन कैलोरीज बिकम स्टोर्ड इन आवर फैट, हमारे बॉडी में जो कैलोरीज है वो फैट के जैसा कब स्टोर होते हैं, मतलब फैट हमारे बॉडी में कब बढ़ता इज द क्वेश्चन। ठीक है। इसके लिए हम पैसेज पूरा पढ़ के इसका आंसर ढूंढेंगे? नो, मत करो। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट ऑप्शन देखो। ऑप्शंस में कुछ ऐसे फालतू फालतू ऑप्शंस देता क्वेश्चन यार, देखते ही आपको पहचाने जाता कि ये गलत है। जैसा यहाँ ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सेस फूड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से कुछ फूड बाहर जा रहा, एलिमिनेटेड मतलब फूड बाहर जा रहा। कभी भी फूड बाहर गए तो फैट कम होता कि बढ़ता? फैट कम होता, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा, फैट कब बढ़ता पूछ रहा। तो ये ऑप्शन क्या हो सकता? गलत हो सकता। फैट कब बढ़ता इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा, फूड हमारे बॉडी से बाहर गए तो क्या है, तो ऑब्वियसली फैट कम होता। तो हमको क्वेश्चन फैट बढ़ने का, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसको पैसेज की देखने की क्या जरूरत है, पैसेज देखने की क्या जरूरत है, हमको ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि आंसर 100% गलत है। कॉमन सेंस यूज करना है। राइट। सेकंड देखिए, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज आर मोर। मूवमेंट एक्सरसाइज हम जितना ज्यादा करेंगे उतना फैट कम होता ना। तो क्वेश्चन क्या है, फैट कब ज्यादा होता बोल रहे, यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज मूवमेंट ज्यादा करो तो इज द ऑप्शन। तो ये भी गलत है, फैट कब ज्यादा होता क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्यादा एक्सरसाइज करो तो फैट कम होता। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। इसके लिए हमको पैसेज पढ़ने की जरूरत है क्या? नो, नो नीड, कॉमन सेंस है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इनटेक, थर्ड ऑप्शन, इनटेक कैलोरीज आर मोर। जो कैलोरीज हम इनटेक कर रहे, जो कैलोरीज हम खा रहे, वो आउट गोइंग कैलोरीज मोर देन, यहाँ देखिए मोर देन, इनटेक कैलोरीज मोर है, जो हम खा रहे वो ज्यादा है आउट गोइंग कैलोरीज से, मतलब खाने ज्यादा, बाहर जा रहा कम। राइट। क्या हो सकता है आंसर, इनटेक कैलोरीज आर मोर, हम ज्यादा खा रहे बोले सर, बाहर जा रहा कम। ज्यादा खा रहे मतलब क्या, फैट बढ़ने के चांसेस हैं। चलो कंफ्यूजन है, फोर्थ ऑप्शन देखो, आउट गोइंग कैलोरीज आर मोर। आउट गोइंग कैलोरीज आर मोर, बाहर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इनटेक कैलोरीज, जितना खा रहे उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, तो यही तो फैट कम होता। फैट फैट कम होता ना। आउट गोइंग कैलोरीज आर मोर, ज्यादा हम वर्क कर रहे हैं, कम खा रहे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो फैट कम होता। क्वेश्चन क्या है, फैट कब बढ़ता क्वेश्चन।
ये तीनों ऑप्शन में फैट कम हो रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। तो इसको हमको पैसेज देखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से हम इसको अटेम्प्ट करें, राइट। यही सेम पैसेज का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये दोनों चार स्टेटमेंट्स में कौन सा ट्रू है? लिखो, ओनली पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर ओवर। मैं अभी इससे पहले थोड़ा बोला था, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस, एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स कोई भी ऑप्शन में है, जैसा यहाँ पे ओनली एक्सट्रीम है, यहाँ पे ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लोग ही ओवरवेट है बोल रहा, ऐसा है क्या? इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे भी ओवरवेट वाले है ना, बांग्लादेश पूर कंट्री है, वहां पे भी ओवरवेट वाले है ना, मोटापे हर जगह है, हर कंट्री में, पूर कंट्री में भी है, हाई डब्ल्यू। यहाँ पे ओनली देखते सही आपको अलर्ट हो जाना है कि ये आंसर गलत हो सकता, एलिमिनेट कर दो उसको। सेकंड, द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम दैट द मिडिल इनकम ग्रुप परहैप्स फेसिंग इज द ओवरवेट। चलो समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, थर्ड ऑप्शन पे चले जाओ, ओनली पीपल ऑफ, देखो यहाँ पे फिर ओनली मिल गया आपने को, तो क्या बोला, जब भी ओनली या एलोन ऐसे कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स ऑप्शन में दिखेंगे तो 90% वो ऑप्शन गलत होने के चांसेस है। सिर्फ मिडिल इनकम के, यहाँ क्या बोल रहा है, ओनली पीपल ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप सफर फ्रॉम ओबेसिटी, सिर्फ मिडिल क्लास के लोग ही मोटापा लाइक ओबेसिटी बीमारी से फेस कर रहे बोलते, तो ये 100% लाइक 90% इसको चांसेस है कि ये गलत हो सकता है। तो चार ऑप्शंस में आप ऑलरेडी दो ऑप्शन चले गए, तो 50% चांस है, अगर आप ये दो ऑप्शन आंख बंद करके कोई भी एक ऑप्शन टिक करे तो 50% चांस है आपका कि आपका आंसर सही हो सकता, राइट। अभी थर्ड ऑप्शन देखिए, अबाउट 50%, देखो यहाँ पे 50% बोल के डायरेक्ट अपने को एक परसेंटेज दिया, नंबर दिया, तो नंबर्स को पैसेज में ढूंढना बहुत आसानी होती, तो अबाउट 50% ऑफ द मिडिल इनकम ग्रुप आर ओवरवेट, मतलब 50% मिडिल इनकम वाले बहुत ओवरवेट है। तो हमको जब क्या करना है, पैसेज में जाना, पैसेज में जाके 50 ढूंढना आसान है ना, एक वर्ड ढूंढने से अच्छा है 50% 50 ढूंढना आसान है। देखो यहाँ पे 50 दिखा देगी, विद इन 2 सेकंड्स मिल गया 50। 50% अडल्ट बोल रहा है, अडल्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज आर, 50% अडल्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 50% मिडिल ग्रुप की बात कर रहा है, मिडिल इनकम की, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। वहां पे पैसेज में अडल्ट की बात कर रहा है 50%, यहाँ पे ऑप्शन में 50% मिडिल इनकम की बात कर रहा, तो ऑप्शन गलत हो गया। तो हमको बिना सेकंड ऑप्शन पढ़े, बिना सेकंड ऑप्शन पढ़े हम ये कंक्लूजन में कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आपको समझ में आया नहीं समझ में आया मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत है, मतलब सही ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा टिक करना है, राइट। हम ये कैसा सॉल्व करें, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस की टेक्निक यूज करके हम इसको बिना पैसेज पढ़े सॉल्व करें। अभी मेरे को एक्सप्लेन करने में आपको 1-2 मिनट्स लगे शायद, बट अगर आप डायरेक्टली करेंगे ना इसको, विद इन 5 सेकंड्स यू कैन सॉल्व इट विदाउट रीडिंग द पैसेज। सो ऐसे टेक्निक्स यूज करके आपको स्मार्ट तरीके से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, ना कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा वर्क करके आवर्स आवर्स पूरा ग्रामर पे स्पेंड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। स्मार्ट वे, मार्क होना है ना आपको, इंग्लिश आर्टिकल्स क्लास के पूरे रूल्स की जरूरत नहीं है ना, मार्क होना है, 1 मार्क होना है आपको, उसको कितना इजीली कितना स्मार्ट वे में आप कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन देखेंगे, यही पैसेज से एक क्वेश्चन है, हु आर लकी अकॉर्डिंग टू पैसेज, लकी कौन है, कौन लोग लकी है, ये क्वेश्चन है, ये भी कॉमन सेंस का सवाल है। ऑप्शन देखिए, दोज हु ईट वेल बट डू नॉट पुट ऑन वेट, ईट वेल जो वो लोग जो अच्छा खाते लेकिन वेट नहीं बढ़ते, वो लोग लकी है क्या पूछ रहा, हाँ हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता, जब कंफ्यूजन है तो सेकंड ऑप्शन पे जाइए। दोज हुज बॉडी डू नॉट बर्न कैलोरीज बोल रहा, दोज हुज बॉडी, जो बॉडी है ना उनकी बॉडी कैलोरी बर्न करती ही नहीं, उनसे वजन उतरता ही नहीं, वो लोग कभी लकी हो सकते क्या, लकी हो सकते, कोई कॉमन सेंस है, वो लोग लकी हो ही नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन देखिए, तो सेकंड ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिए कॉमन सेंस यूज करके, थर्ड ऑप्शन देखिए एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके, दोज हु ईट लिटिल पुट ऑन वेट, मतलब वो लोग जो कम खाते और जल्दी वेट बढ़ जाते, वो लोग लकी हो सकते क्या, एक 2 मिनट 1-2 सेकंड सोचे तो हमको समझ में आया था, कम खा के ज्यादा वेट बढ़ना अच्छी बात है, वो लोग लकी है, नो, कॉमन सेंस की बात है, तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हम पैसेज पढ़े क्या, नहीं पढ़े पैसेज, पैसेज पढ़ेंगे तो भी वही मिलता, क्योंकि कॉमन सेंस है। अब पैसेज में कोई ऐसा नहीं देता कि उल्टा ही दे देता कि कम खा के ज्यादा वेट बढ़ता, ऐसा कुछ रूल के अगेंस्ट जाते क्या पैसेज में, नहीं, बिना पैसेज पढ़े हम दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए। फोर्थ ऑप्शन देखिए, दोज हु ईट एक्सेस एंड पुट ऑन वेट,
दोज हु ईट एक्सेस, एक्सेस मतलब दो ज्यादा, जो लोग ज्यादा खाते वो ज्यादा वेट बढ़ते बोल रहा। सही है आंसर, मतलब जो लोग ज्यादा, वो सही है ना, लेकिन लकी हो सकता है क्या, क्वेश्चन क्या है, कौन लकी है बोल रहा। ज्यादा खाते तो ज्यादा वेट बढ़ते, वो लकी हो ही नहीं सकते, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन, दोज हु ईट वेल, अच्छा खाते, ज्यादा खाते लेकिन कम वेट, उनका वेट बढ़ता ही नहीं, ऐसे लोग लकी है। तो हम तीन ऑप्शन एलिमिनेट करने से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हम पैसेज को बिना पढ़े, without reading single line in the passage, we could able to answer this question. So that is smartness, right? हमको ऐसा स्मार्ट बन के हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। हम तीन क्वेश्चन बिना पैसेज पढ़े सॉल्व कर लिए। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन भी देखेंगे, वही पैसेज से। चौथा क्वेश्चन है 63, थर्ड क्वेश्चन, द ओनली वे इन विच वन कैन रिड्यूस इफेक्टिवली वेट। ओनली वे, ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी वजह से वेट कम हो सकता, इसके लिए पैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, टू जॉग फॉर ए माइल वीकली वंस, एक हफ्ते में एक बार जॉगिंग करो बोल रहा, हाँ हो सकता, वेट कम हो सकता ना इससे। तो हम सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे, टू जॉग वॉक ब्रिस्कली एवरी डे। देखो यहाँ पे ब्रिस्कली है, ब्रिस्कली मतलब क्या, कंटिन्यूसली, बार बार, एवरी डे, मतलब सुबह भी 2 घंटे वॉकिंग पे जा रहे हैं, शाम में भी 2 घंटे वॉकिंग जा रहे हैं, एवरी डे ब्रिस्कली। गो फॉर वॉकिंग फॉर ए डे इज गुड, बट ब्रिस्कली एवरीडे मतलब हर दिन में, सुबह में भी जा रहे वॉकिंग, शाम में भी जा रहे, मतलब एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा ज्यादा वर्क करने से कोई अच्छा रिजल्ट आता क्या, नहीं आता, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस है। तो एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस क्या बोला मैं, एलिमिनेट करना है, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 90% चांसेस है। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हम। थर्ड ऑप्शन देखिए, टू कंट्रोल वंस फूड एलोन, यहाँ देखिए एलोन आया, देखिए एलोन मतलब ऐसा, एलोन सिर्फ फूड कंट्रोल करने से वेट कम होता बोल रहा, उसका मतलब एलोन एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस है। आपको एलोन या फिर ओनली दिखा तो हमको अलर्ट होना है, इसको एलिमिनेट करना है। बाय एक्सरसाइज एलोन, ये देखो यहाँ पे एलोन दिया, देखो एलोन फिर एक बार दिया, तो हमको आसान हो गया, तीन ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। तो बिना हम ऑप्शन पढ़े फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके हमको ऐसे स्मार्ट बनना है। बहुत सारे लोग पैसेज पे प्रॉब्लम है बोल रहे, इसलिए मैं एक पैसेज आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैसेज है ये, मैं बनाए सिर्फ पैसेज नहीं है, 2017 टेट पेपर का पैसेज है। हम और एक पैसेज भी करेंगे सर, एक क्वेश्चन का एक पेपर में शायद इजी दिया हूँ, और एक पैसेज भी करेंगे हम, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके बिना पैसेज पढ़े उसको आंसर करेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए इसका पैसेज का, मोस्ट पेरेंट्स बोल रहा है, मोस्ट पेरेंट्स, हाँ क्या है मोस्ट पेरेंट्स ओवरफीड द चिल्ड्रन बिकॉज, बहुत सारे लोग है ना पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा खिलाते, किस लिए खिलाते पूछ रहा, इसके लिए पैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको ऑप्शन देखो तो समझ में आया था। दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, ज्यादा खिलाने से हार्ट अटैक से बच सकते क्या, फालतू ऑप्शन, कॉमन सेंस, मतलब ज्यादा खिला तो हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इन क्या बोल रहा, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करने ज्यादा खिलाते रहते, दैट इज द ऑप्शन सेम। तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन, दे वांट टू बी मोर केयरिंग, हाँ हो सकता, बोल नहीं सकते, मतलब अपने बच्चों को बहुत केयर करते इसलिए ज्यादा वो लोगों को खिलाते रहते, हो सकता है आंसर। थर्ड ऑप्शन देखिए, दे वांट द चिल्ड्रन टू बी हेल्दी, हाँ मेरा बच्चा अच्छा हेल्दी रहना इसलिए ज्यादा खिला रही हूँ, हाँ हो सकता है, ये भी आंसर गलत नहीं है इसमें, हो सकता है ना, थोड़े लोग ज्यादा केयर करते हैं, थोड़े लोग हेल्थी, बच्चा हेल्दी रहना बोल के ज्यादा खिलाते, तो ये भी गलत नहीं है ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखिए, दे वांट दे वांट द चिल्ड्रन टू बी चबी, चबी मतलब मोटा, मतलब वो लोग पेरेंट्स चाहते कि अपना बच्चा थोड़ा मोटा ताजा रहना, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है, मतलब ये ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सके, बाकी के तीन गलत नहीं है, सही हो सकता, 2 3 4 में आंसर हो सकता। ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, पैसेज पढ़ना नहीं है फिर अगेन। चलो ये इसका थ्री ऑप्शन में एक है, अब मैं पैसेज फर्स्ट लाइन से पढ़ती हूँ, फर्स्ट लाइन में क्या दिया वो समझती हूँ, सेकंड लाइन में क्या दिया वो समझती हूँ, नो ऐसा नहीं करना है। ये आंसर के लिए हमको पैसेज रिफर करना है, लेकिन पैसेज पढ़ना नहीं है, ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मोस्ट पेरेंट्स है, पेरेंट वर्ड ढूंढो बस काफी है, फर्स्ट लाइन में क्या दिया सेकंड लाइन में क्या दिया अपने को मतलब नहीं है, पेरेंट वर्ड ढूंढो बस। ढूंढना कितना आसान है, समझना मुश्किल है, ढूंढना आसान है। देखिए बीइंग ओवरवेट ढूंढना है, पढ़ना नहीं है, पेरेंट 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 किधर है देखिए।
पेरेंट वर्ड ढूंढना है इसमें बस। फर्स्ट पैराग्राफ में पेरेंट पेरेंट नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में पेरेंट नहीं है, देखिए थर्ड पैराग्राफ में पेरेंट मिल गया, पेरेंट मिल गया, बस पेरेंट क्वेश्चन में भी दिया, पेरेंट दिया। अब पेरेंट जब मिल गया आपको तो पेरेंट जो दिए सेंटेंस पढ़ना है, पेरेंट किस लिए दिया उन, देखो वहां पे सेंटेंस क्या है, मोस्ट पेरेंट्स लव ए फैट चब्बी बेबी। बहुत सारे पेरेंट्स है ना चब्बी बेबी लव करते, ये क्वेश्चन दिया, बस काफी है, आंसर मिल गया खत्म। पेरेंट मिला, छब्बी मिल गया, आंसर में पेरेंट है छब्बी है, आंसर क्या है, छब्बी इज द करेक्ट आंसर। हमको बाकी का नेक्स्ट लाइन वो लाइन कुछ नहीं करना है, आंसर मिल गया वहां पे। तो इनडायरेक्टली सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन गलत है। तो अगर हमको पैसेज में आंसर मिला भी नहीं, तो हमको क्या करना है, स्किम थ्रू करना है। Is station is going correctly? No, no, no. I clicked the link actually. Okay, is it good? Good to go? Yeah, it's Okay, going fine. fine. Okay, fine. Sorry. So क्या सीखे हम, पैसेज फिर भी पढ़ना नहीं है, जरूरत पड़ने पर भी हमको पैसेज ढूंढना है लेकिन पढ़ना नहीं है, राइट। तो वो पैसेज को हम बिना क्वेश्चन पढ़े हम आंसर कर लिए इसको। नेक्स्ट विल गो टू द अनदर क्वेश्चन। यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ये क्वेश्चन देखते साथ ही अरे यार मतलब इतना लंबा क्वेश्चन है, इसमें कितना मतलब ऑप्शन ए बी सी डी 5 ऑप्शंस दे दिया, नीचे भी ऑप्शन 1 में 5 ऑप्शंस दे दिया। इधर देखिए 69th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पी एस क्यू आर पी, ऐसे क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल है। मैं आपको विद इन 5 सेकंड्स में इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो कभी भी एक टेक्निक है, जो भी ऑप्शंस में लुक अलाइक मतलब सेम दिखने वाले ऑप्शन ज्यादा 90% चांस है कि जो सेम आंसर दिखते सेम दिखते वो करेक्ट हो सकते हैं, 90% चांस है कि वो सही हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आंसर सिर्फ ऑप्शंस देख रहा हूँ। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 2 ऑप्शंस में टी टी है, फर्स्ट 2 ऑप्शंस में टी टी है, सेकंड 2 ऑप्शंस में क्यू क्यू है, राइट। ठीक है, तो हम अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर टी है अगर सिलेक्ट हो गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता, राइट। मतलब 2 टी दिया हुआ है 2 क्यू दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन टी है या क्यू है वो पहचानना है पहले। क्योंकि हमको फर्स्ट ऑप्शन टी है या क्यू है ये पहचान लियो तो 2 ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर फर्स्ट का आंसर टी है समझो, थर्ड और फोर्थ का आंसर वैसे भी गलत है ना, राइट। अभी देखेंगे फर्स्ट आंसर टी है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, जब देखिए जम्बल वर्ड्स है, हम इसको पैराग्राफ वाइज में जमाना है। देखिए पी फर्स्ट हमको क्या करना है, फर्स्ट पी पढ़ना है क्या, क्यू पढ़ना है क्या, नहीं करना है हमको, पहले टी क्यू ही पढ़ना है। क्योंकि आंसर फर्स्ट 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन टी है 2 ऑप्शन क्यू है, तो हमको टी क्यू 2 ऑप्शन ही पढ़ना है, बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टी है, मैं टी ले रहा हूँ, टी पढ़ रहा हूँ। रैबिट डिड यू जस्ट कॉल मी ओवर हियर। कोई भी कॉन्वर्जेशन में पहला क्वेश्चन देता क्या, कॉमन सेंस टी। चलो अब नेक्स्ट क्यू पढ़ो, थर्ड फोर्थ में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्यू है, तो पहले क्यू पढ़ो। ए वेल स्वैम ओवर टू सी हु ए वेल स्वैम ओवर टू सी हु वाज कॉलिंग हर एंड लुक्ड हर। एक वेल है जो स्विम करके आई और वो देख रही थी कि कौन उसको बुलाया। क्यू ऑप्शन है, टी ऑप्शन है, मतलब एक पैसेज में पहला कौन सा आ सकता, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन क्या दिया, जंबल वर्ड से एक पैसेज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, तो आपको क्या बोल रहा है, उसको सही अरेंज करो बोल रहा। तो हमको स्मार्ट वर्क करके क्या करना है, ऑप्शंस देख लिए हम, ऑप्शंस में पहले 2 ऑप्शंस में पहला वर्ड टी है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में पहला वर्ड क्यू है, तो हमको टी और क्यू पे ही फोकस करना है, हमको पी आर एस पे फोकस नहीं करना है। तो हमको क्यू और टी पे हम फोकस करें तो हम ये कंक्लूजन पे आए कि एक पैराग्राफ एक सिंपल पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, यहाँ पे क्यू ऑप्शन में इंट्रोडक्शन दे रहा है, एक वेल है जो स्विम करके आई और वो देख रही थी कि किसने उसको बुलाया, तो वो इंट्रोडक्शन टाइप है। तो 100% में से 90% आर होने के चांसेस है, मतलब फर्स्ट आंसर आर होने के चांस
सॉरी फर्स्ट आंसर क्यू होने के चांसेस है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्यू मतलब क्या, फर्स्ट टू ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमको फर्स्ट लाइन जो है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन मिल गई, क्यू है, तो फर्स्ट टू ऑप्शन वैसे भी चले गए। अब देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे ध्यान दो, ध्यान से देखो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे हम ऑलरेडी फर्स्ट टू ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ देखो ये क्यू क्यू दिख रहा है, यहाँ पे आई एम हाईलाइटिंग विद द ग्रीन पेन, यहाँ पे क्यू क्यू दिख रहा, यहाँ देखो यहाँ पे पी आर दिख रहा लास्ट में, मतलब दोनों सेम लग रहे, दोनों ऑप्शन सेम लग रहे। इससे पहले बोला मैं, दो जो सेम दिखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन देने वाला क्या समझता है, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन नहीं, आपको और आसान हो जाता है वहाँ पे। तो आपको पी आर नहीं देखना है, क्यू वैसे भी हम देख लिए, हमको क्या करना है, सिर्फ टी एस देखना है, मतलब क्यू सेंटेंस के बाद टी आ रहा कि एस आ रहा देखना है, ठीक है। हमको सिर्फ टी और एस देखना है बस। एक वेल थी जो स्विम करते हुए आई और देखी आसपास कि कौन उसको बुला रहा। अब इसके बाद ऑप्शन टी है कि एस है, हम टी को देखेंगे। रैबिट डिड यू जस्ट कॉल मी, वो स्विम करते हुए आई और देखी और रैबिट को पूछी कि क्या तूने मुझे बुलाया। एस सेंटेंस क्या बोल रहा देखिए, नेक्स्ट एस सेंटेंस है, आफ्टर फ्यू मिनट्स शी सॉ ए टाइनी रैबिट जंपिंग आउट फ्रॉम द क्लिफ। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन स्टोरी क्या है, एक वेल है जो स्विम करते हुए आई, इमीडिएटली उन क्या बोल रहा, एक ऑप्शन में क्या बोल रहा कि डायरेक्टली आते ही पूछ ली उन रैबिट को, रैबिट तूने मुझे कुछ बुलाया क्या बोल के, लेकिन एस एस का ऑप्शन बोल रहा आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद वो एक रैबिट को देखी। आप देखो, आप बताओ, एक वेल स्विम करके आने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती क्या, स्विम करके आई, आफ्टर कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद उन एक रैबिट को देखी, रैबिट को देखने के बाद सवाल पूछी ना, वही समझ में आ रहा। तो सेकंड ऑप्शन क्यू के बाद क्या हो सकता, एस हो सकता। तो जहां पे भी क्यू एस है, मतलब क्यू एस कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में हमको क्यू एस मिल गया। तो हमको टी पी आर ये चेक करने की जरूरत नहीं है, हम क्यू चेक कर लिए, एस चेक कर लिए, खत्म, आंसर फोर्थ। ठीक है, हम पूरा पढ़े क्या, पी हम फर्स्ट, हम तो पी तो पढ़े ही नहीं, क्वेश्चन में पी ऑप्शन जो है ना हम पढ़े ही नहीं, बिना पी पढ़े हम आंसर कर लिए, राइट। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आई थिंक मीटिंग हैज एंडेड, इज मीटिंग ऑन, ओके फाइन, Yes, yes. Who is this? ओके फाइन फाइन नो प्रॉब्लम। सो हम बिना पढ़े, बिना क्वेश्चन पढ़े, हम इसको ऑप्शंस को देख के, ऑप्शंस में भी पूरे ऑप्शंस हम ट्राई नहीं करें, एलिमिनेशन मेथड टेक्निक यूज करके हम इसको सॉल्व करें। और एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको टाइम कंज्यूम है, नो, इसको भी हम स्मार्टली यूज कर सकते हैं। देयर इज अनदर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया, हम इसको देखना ही जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन मत देखो, पहले ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन को देखो मत, पहले ऑप्शन देखो। मैं क्या बोला, जो सेम दिखते हैं मैक्सिमम वही आंसर होने के चांसेस है। और ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खुद के क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में बी बी है, राइट, सेकंड ऑफ थर्ड ऑप्शन ए है, ये अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब ए है, मतलब बी बी है, मतलब ये दो सेम दिख रहे हैं, मतलब क्या बोला, 90% चांस है कि ये दो में ही आंसर है, मतलब ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट है, ठीक है। और इसमें भी देखिए लास्ट वर्ड देखिए ए है, देखिए यहाँ पे लास्ट ए, यहाँ पे बी बी ए, बी बी ए, मतलब क्या, दोनों एक जैसे दिख रहे। तो आपको क्या करना है, बी चेक नहीं करना है, ए चेक नहीं करना है, सी डी, मतलब बी के बाद सी आया तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बी के बाद डी आया तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हम कोई एक चेक करेंगे, बी के बाद सी आता है या बी के बाद डी आता, वो चेक करेंगे, ठीक है। हम पहले सी चेक करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्वेश्चन है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट का क्वेश्चन यहाँ समझ क्वेश्चन आपको, फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, ऐसा ये मैच द फॉलोइंग है बोले साहब, फर्स्ट का ऑप्शन ए है या बी है, सी है, डी है बोले साहब, राइट। अब देखिए हमको सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमको सेकंड ऑप्शन चेक करना है सी। तो यहाँ पे देखिए लवली वेदर, मतलब कोई लवली वेदर अगर आप बोले कि, आपको बोले कि अरे आज मौसम कितना अच्छा है, तो आप जवाब क्या देंगे उसका, अरे हाँ आज अच्छा है मौसम बोलते ना, अरे हाँ, हाँ मीन्स व्हाट, यस, इंग्लिश में हाँ किसको बोलते, यस। तो आंसर कहाँ है यहाँ पे, एस, मतलब सेकंड का आंसर क्या हो सकता, डी हो सकता, मतलब ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन डी जहां है वो आंसर हो सकता। हमको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बी के बाद डी मिल गया यहाँ पे, राइट। तो खत्म, बिना
फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पढ़े, सिर्फ एक ऑप्शन चेक करके हम इसको टिक करें, तो आंसर, सही आंसर क्या है? 2। हम सिर्फ ऑब्जर्व करके 2 ऑप्शन निकाल लिए, सिर्फ ऑब्जर्व करके, सिर्फ देख के 2 ऑप्शन निकाल लिए, उसमें सिर्फ एक टेस्ट करे, जैसे सेकंड आंसर का टेस्ट करे, लवली वेदर, तो कोई आपको लवली वेदर बोलता, आप क्या बोलते? हाँ यहाँ पे भी अच्छा है, सेम हियर बोलते क्या? हाँ ग्रेट बोलते अच्छा है वो, माशाल्लाह ग्रेट बोलते क्या? नो। बाय फॉर नो बोलते क्या? कोई अच्छा है वेदर बोलते बाय फॉर नो, मतलब ये रॉन्ग है, ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। यस इट इज, हाँ अच्छा है, तो सेकंड का आंसर डी है, तो सेकंड का आंसर क्या है? डी। डी किस में? और एक अगर नोटिस करें आप, अगर ये ऑप्शंस में और एक नोटिस करें, और एक टेक्निक अगर नोटिस करें, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शंस देके, ये हमेशा वर्क करता नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, ये 2 बी है, ये 2 ए है, और यहाँ देखिए डी ऑप्शन। हेलो, इज इट क्लियर? Arshad bro, could you explain once again? Is it clear? No, my voice is clear. Am I audible to everyone? Yeah, your voice is clear, but some students I having some issues, so they are okay. not I able request to. everyone, please turn. I request everyone turn up the volume. Volume थोड़ा बढ़ा ले, तो I think you feel good. Okay, fine. Let's get on topic. यहाँ पे डी 2 बार रिपीट हो रहा, देखिए सेकंड ऑप्शन में डी 2 बार रिपीट हो रहा, ये तो हम 2 सेम लग रहे, उसमें डी 2 बार रिपीट हो रहा, तो आपको क्वेश्चनियर कंफ्यूज करने के लिए वो दिया, तो लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। डी मतलब मैक्सिमम यही चांसेस है कि क्वेश्चन राइट हो सकता है, और हम सॉल्व करके भी देखिए कि वही आंसर करेक्ट है, राइट। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके, ऑब्जर्वेशन से, राइट, स्मार्ट वे से हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करें। हमको टाइम बचाना है, राइट। हम एक्सप्लेन करने में 2-3 मिनट लगे शायद, बट आपको एक बार ये टेक्निक आ गई तो विद इन 5 सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन दिया आई डोंट नो, आई एम कंसर्न अबाउट द ऑप्शंस, ऑप्शंस ही देखना है। यहाँ देखिए सी सी दिखा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में सी सी दिख रहा मेरे को, एक बी डी, मतलब कौन सा ज्यादा अलाइक दिख रहा? ये 2 सिमिलर दिख रहा, मतलब सी सी बी डी, मतलब ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, 90% चांस है कि उसमें आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। तो सी सी यहाँ पे है, चलो मतलब 2 एक जैसे लग रहे, इसमें से आंसर है, तो हमको सी चेक करना है क्या? सी ऑप्शन 1 में भी है, सी ऑप्शन सेकंड में भी है, हमको सेकंड ऑप्शन चेक करना है। सेकंड ऑप्शन ए है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन अगर डी है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन हम चेक करेंगे, राइट। तो आइडेंटिफाई द जम्बल्ड वर्ड्स दिया इसमें, सेकंड ऑप्शन देखिए, एक छोटा सा पैसेज दिया, इसमें कौन सा पहले आ रहा कौन सा सेकंड आ रहा वो एक दिया, क्या है यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ द कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 पीपल, 2 लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों का कॉन्वर्जेशन दिया ए बी सी डी ई में, कौन पहले बात कर रहा कौन बाद में बात कर रहा, ये आपको अरेंज करना है, एक सेंटेंस में अरेंज करना है। एक 2 लोग बात कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन, उसमें से पहला कौन बात कर रहा, उसके बाद कैसा कॉन्वर्जेशन हुआ, ऑर्डर ऑर्डर जमाना है, एक सही प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, वो जम्बल्ड ऑर्डर में। देखिए सेकंड फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन ही चेक करना है, सेकंड ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन ये डी चेक करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन ए है, नॉट टू वेल बोल के दिया। कोई भी कॉन्वर्सेशन 2 लोग बात करे तो क्या बोलते हैं? पहले हाय हेलो सलाम हाउ आर यू ऐसा बोलते ना, मिलते साथ ही कोई फर्स्ट पर्सन आया, सेकंड पर्सन आमने सामने आते साथ ही आई एम नॉट टू वेल बोलते क्या? दैट इज कॉमन सेंस, वो हो ही नहीं सकता। जब सेकंड ऑप्शन ए नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है? डी। लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आई एम सेकंड ऑप्शन बी पढ़िए, आई एम बिगिनिंग टू हेट माई जॉब, कोई भी दोनों मिले तो ये वर्ड बोलते क्या? आई एम बिगिनिंग टू हेट माई जॉब नहीं बोलते, राइट। हाई जॉर्ज, देखो यहाँ पे हाई आया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सी है, इसलिए देखो सी सी 2 बार रिपीट करा क्योंकि आपको कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ। सी के बाद क्या है? हाई होने के बाद कोई भी क्या बोलते हैं? आई एम फाइन, या फिर ओके फाइन, मैं अच्छा नहीं हूँ बोलते, या अच्छा हूँ बोलते, जो भी है। यहाँ डी ऑप्शन देखिए, हाउ कम, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आ सकता क्या कभी? आप एक क्वेश्चन करें आप कैसे हो, तो आप एक रिटर्न में क्वेश्चन करते क्या? पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर देंगे फिर आप एक क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हाई जॉर्ज बोल के हाउ आर यू बीन, आप कैसे हो बोल के यहाँ पे पहला सवाल करा, तो दूसरा क्या करना? अच्छा है तो अच्छा है बोलना, बुरा है तो आई एम बैड बोलना, राइट। तो इसका जवाब क्या है? हाई के बाद क्या ना आंसर आना, आई एम नॉट टू वेल इज द आंसर, मतलब इन पहला क्वेश्चन हाई जॉर्ज बोल के एक फर्स्ट पर्सन बोल रहा, सेकंड पर्सन आई एम वेल आई एम नॉट वेल, ठीक है। वैसा ये आंसर है। अब देखो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आई थॉट यू लाइक्ड, मुझे लगा,
अब भाई कॉन्वर्जेशन शुरू ही नहीं हुई कि क्या मुझे लगा, राइट। तो क्या है यहाँ पे, सी के बाद डी ऑप्शन आया, तो जो भी सी के बाद डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, जैसा यहाँ पे ऑप्शन 2 में सी के बाद डी दिख रहा। आई होप इट इज क्लियर। पहले हमको ऑब्जर्वेशन मेथड से एलिमिनेट करना है, उसके बाद हमको हर ऑप्शन चेक नहीं करना है, जो सेम है उसमें ही ज्यादा आंसर चांसेस है कि वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस है, ठीक है। सर सी के बाद तो डी भी क्वेश्चन ही है ना सर? सी के बाद डी क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, सॉरी या फर्स्ट आंसर राइट है, सी के बाद हाँ डी सर, आप क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो गए। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। यहाँ पे सी के बाद डी भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। नेक्स्ट पेडागोगी का क्वेश्चन है। पेडागोगी के बहुत बड़े लंबे लंबे नोट्स है, कॉमन सेंस से कुछ 6 क्वेश्चंस में से मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से आपको 4 क्वेश्चंस तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डायरी राइटिंग, डायरी राइटिंग का क्या फीचर है बोल रहा हूँ। आप सबको मालूम डायरी राइटिंग किसके लिए लिखते हैं, क्या है, एवरीथिंग बेसिक कॉमन सेंस है, राइट। डायरी किसके लिए है, किस मतलब कब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू नो एवरीथिंग, राइट। देखो फर्स्ट मेंटेनिंग द प्रॉपर लेआउट ऑफ द टेक्स्ट, नहीं समझ में आया, प्रॉपर लेआउट क्या है एंड एवरीथिंग छोड़ो, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सेकंड पे जाओ, डिजाइन एंड ग्राफिक्स। डिजाइन एंड ग्राफिक्स डायरी में कभी सुने आप, कभी ग्राफिक डिजाइन वगैरह डाले क्या डायरी में, या कॉमन सेंस हो ही नहीं सकता आंसर सेकंड का। यूज ऑफ पोलाइट लैंग्वेज, डायरी आप खुद के लिए लिख ले रहे हैं, आप खुद के लिए पर्सनल लैंग्वेज, उसमें पोलाइट लैंग्वेज क्या है, पोलाइट लैंग्वेज तो लेटर में यूज करते हैं ना, आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो पोलाइट लैंग्वेज में यूज करते हैं, डायरी को पोलाइट लैंग्वेज को क्या लिंक है, कॉमन सेंस, थर्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता, राइट। मैं पेडागोगी पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, मतलब बिना पढ़े भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चंस है ना स्मार्ट वे में सॉल्व करने की पहले कोशिश करना, नहीं सॉल्व हुआ तो तब हम टेक्निकल। 6 मार्क्स पेडागोगी में 4 क्वेश्चंस आपको कॉमन सेंस, मतलब गवर्नमेंट आपको चाहती है कि आपको कुछ चीजें मालूम हो, आपको क्यों पढ़ो बोल रही, आपको कुछ चीजें अवेयर कराना चाह रही, कुछ चीजों को आपसे अवेयर कराना चाह रही, इसलिए आपको एग्जाम लगा रही ना। तो 4 क्वेश्चन आपको बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, जैसा ये मेथड क्या है, वो मेथड क्या है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो बेसिक कॉमन सेंस का रहते हैं। तो यहाँ पे हमको सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ना, वो कॉमन सेंस से हम एलिमिनेट कर दिए। देखो यूज ऑफ लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टू मूड, यूज ऑफ लैंग्वेज, डायरी हम पर्सनली लिख रहे, लैंग्वेज का कोई स्कूल, इससे कोई लेना देना है ही नहीं लैंग्वेज से, आप पोलाइट लैंग्वेज में लिखो, कौन से भी लैंग्वेज में लिखो, डायरी इज अ पर्सनल थिंग, तो डायरी को और लैंग्वेज को लेना देना है ही नहीं, कॉमन सेंस, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट, बिना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े आई एम आंसरिंग टिकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है भी मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ गलत है तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है ना, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग फर्स्ट ऑप्शन, right? So I hope it is clear ki how we are solving questions using smart way. These are every question I am explaining is asked in the previous year questions. It is not self-made. It is the previous year questions, right? There are another examples. Common people do not realize their dreams. ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है, 61, 62, 63, 64 यहाँ पे नंबर्स देखिए आप, पैराग्राफ के क्वेश्चन से हम बिना पैराग्राफ पढ़े इसको आंसर कर सकते हैं। पैराग्राफ क्या है वो भी नहीं दिया मैं, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के हम आंसर कर देंगे, कॉमन सेंस यूज करके, एलिमिनेशन मेथड टेक्निक यूज करके। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 61 का, कॉमन पीपल डू नॉट रियलाइज देयर ड्रीम्स ड्यू टू इग्नोरेंस। कॉमन पीपल है ना अपने ड्रीम्स को रियलाइज नहीं करते, वो लोग नेग्लिजेंस रहते, ड्रीम को लेके नेग्लिजेंस रहते। किस ऑप्शन 1 पावर ऑफ लर्निंग, वो लोग क्यों अपने ड्रीम के लिए मेहनत नहीं करते, पूछ रहा हूँ क्यों नहीं करते। इग्नोरेंस, वो लोगों को अवेयर नहीं है, वो लोगों को मालूम नहीं है, किसके बारे में मालूम नहीं है, पावर ऑफ लर्निंग। हाँ मतलब कॉमन सेंस है, मतलब हो सकता है आंसर सही है गलत है, ओके नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन में कंफ्यूजन है, सेकंड ऑप्शन पे जाइए, पावर ऑफ मनी। आप एक कॉमन सेंस से सोचिए, हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ मनी क्यों आया, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ मनी से ड्रीम्स को क्या लेना देना है, कॉमन सेंस, तो सेकंड ऑप्शन में भी रॉन्ग हो सकता। पावर ऑफ पीपल, हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पावर ऑफ पीपल कहाँ से आया, पावर पीपल कितना ताकतवर है, बाहर लोग कितने ताकतवर है, उससे हमारे ड्रीम से क्या लेना देना है, फालतू ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन गलत है, मतलब कॉमन सेंस हम इग्नोर कर दिए इसको। फोर्थ ऑप्शन पावर ऑफ लाइट,
दिस इज द स्टूपिडेस्ट आंसर, स्टूपिडेस्ट, मतलब वो क्वेश्चनियर क्यों दिया आई डोंट नो। पावर ऑफ लाइफ को ड्रीम से क्या लेना देना है, मतलब देखते ही एलिमिनेटेड, देखते ही समझ गए कि वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, राइट। तो जब 2 3 4 एलिमिनेट हो गए, मैं बिना ऑप्शन पढ़े आई कैन टिक फर्स्ट ऑप्शन, पावर ऑफ लर्निंग, और सेंस भी लग रहा, मतलब वो लोगों को सीखने का जो जज्बा है ना नहीं रहने की वजह से वो लोग ड्रीम्स अचीव नहीं करते, या दैट मेक सेंस, राइट। तो पावर ऑफ लाइफ, पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ मनी को अपने ड्रीम से क्या लेना देना है, कुछ लेना देना है, देयर इज इररिलेवेंट स्टूपिड ऑप्शन। पैसेज पढ़ा क्या मैं, नो, बिना पैसेज पढ़े आई कैन एबल टू अटेम्प्ट दिस, और बहुत सारे लोगों को पैसेज में डर है, राइट। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वी विल टीच यू कि हम स्मार्ट वे में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट बी विथ अस, 30 डेज का वी आर प्लानिंग फॉर यू, यू जस्ट कनेक्ट विथ अस, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, वी विल मेक एवरीथिंग इजी फॉर यू, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। जंगल में सबसे ज्यादा मेहनत है ना गधा करता, बट ही इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंग ऑफ द फॉरेस्ट तो लायन है, राइट। तो ज्यादा मेहनत करने वाला कभी भी ही मे बी हार्ड वर्किंग, लेकिन जंगल का राजा कौन है, लायन है। और लायन शिकार करता क्या, जंगल में चीता शिकार करता, शेर शिकार करता, लायन दूसरा जानवर जो शिकार करता ना उसको जाके डरा के वो अपना पेट भरता, राइट। तो आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग शिकार करेंगे आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके लिए इजी करेंगे, हम आपके लिए टेक्निक्स, नए नए टेक्निक्स हम आपको बताएंगे, राइट। आपको क्या करना है, हम जो भी टेक्निक्स आपको सिखाए उसको अडॉप्ट करके आपको लिखना है। आपको खुद टेक्निक्स इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, आपको खुद पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दूसरी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको हर चीज टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी विल मेक इट ईजी फॉर यू, हम लोग आपको ईजी बनाएंगे, और राइट। सेकंड 62 क्वेश्चन देखिए, बिना पैसेज पढ़े हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इफ somebody is jammed in between, excellent people live their dreams by extracting from, excellent people जो है, जो बेहतरीन लोग है, वो लोग ड्रीम्स को अचीव करते, कैसे अचीव करते इज द क्वेश्चन। लिव द ड्रीम बाय एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम, कौन से चीजों से इंस्पायर होके वो लोग ड्रीम्स अचीव कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख के बिना पैसेज पढ़े हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नेचर है, नेचर देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में नेचर है, सेकंड ऑप्शन में नेचर है, थर्ड ऑप्शन पे नेचर है ना, नेचर है, नेचर के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब हर एक ऑप्शन में नेचर है तो उसके बारे में सोचो मैं, राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, सोशल सर्किल, सोशल सर्किल मतलब फ्रेंड्स, हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीलेंट पीपल, एक्सीलेंट पीपल मतलब जो सक्सेसफुल पीपल है, सोशल सर्किल मतलब क्या, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मतलब गली का कोई भी फ्रेंड, ये पूरा सोशल सर्किल बोलते हैं। सोशल सर्किल मतलब क्या, पहचाना, जान पहचाना के लोग, तो जान पहचान, जान सक्सेस होने के बाद से सोशल सर्किल का क्या रिलेशन है, मतलब सोशल सर्किल सक्सेस रिलेशन ही नहीं दिख रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है वहां पे ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। अब नेचर को हम देखना ही नहीं है, क्योंकि हर ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में नेचर है तो उसको देखो ही मत। मनी फेल्यूर, सक्सेस पीपल फेल्यूर से सीखता, हाँ हो सकता, राइट। मनी, सक्सेस से, मनी से क्या लेना देना है, मतलब बहुत गरीब लोग भी सक्सेस हुए हैं, राइट। तो ये ऑप्शन भी कुछ गड़बड़ दिख रहा, मनी को सक्सेस से कोई लेना देना नहीं, सेकंड ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। थर्ड ऑप्शन देखिए, नेचर, एनवायरमेंट एंड पर्सनल चार्म, सक्सेस से पर्सनल चार्म, पर्सनल चार्म मतलब पर्सनल ब्यूटी, ब्यूटी को और सक्सेस से क्या लेना देना है, मतलब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, थर्ड ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड, राइट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, नेचर, पास्ट एक्सपीरियंस एंड फेल्यूर, हाँ नेचर मतलब ये तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन में वही है, पास्ट एक्सपीरियंस, सक्सेस पीपल है ना पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता और फेल्यूर से सीखता, राइट। तो दिस मेक सेंस, राइट। पर्सनल चार्म, मनी, सोशल सर्किल से तो ये ऑप्शन ज्यादा मेक सेंस करता ना, तो ऑप्शन 4 मस्ट बी करेक्ट आंसर। विदाउट रीडिंग द पैसेज आई एम अटेम्प्टिंग इट। वी विल मूव टू द 63 क्वेश्चन। एक्सलेंट पीपल, जो बेहतरीन लोग हैं, वो लोग, उनकी क्वालिटी क्या है, नेवर फेक सेटबैक्स, मतलब वो लोग कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकते, ये मतलब ये क्या है, सक्सेसफुल वो है जो हार के जीतने वाले सक्सेसफुल है ना, तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब वो नेवर है ना, नेवर नेगेटिव सेंटेंस है, ओनली, अलोन, नेवर कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे वर्ड्स है ना एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स है, ये 100% 90% चांस है कि ये गलत हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। फेस सेटबैक्स, सक्सेस पीपल फेस सेटबैक्स, हाँ ये हो सकता, मतलब सक्सेस पीपल का मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कभी फेल्यूर फेस ही नहीं करा, हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए, उसमें सेकंड में डाउट है इसलिए एलिमेंट नहीं करा हमने उसको। थर्ड, दे ऑलवेज परफेक्ट, देखो ऑलवेज, नेवर, ये एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स है, ऑलवेज हमेशा कोई चीज एक जैसी नहीं हो सकती, कभी कभी दूसरी भी हो सकती है,
हमेशा कोई चीज एक ही जैसी होती क्या? कभी भी एक्सेप्शनल केस में अलग भी हो सकती, राइट? तो ऑलवेज, नेवर, अलोन, ओनली, ऐसे वर्ड्स आएंगे ना तो आपको अलर्ट होना है कि वो 100% 90% रॉन्ग होने के चांसेस है। दे आर ऑलवेज परफेक्ट। हम मैं थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। दे आर सेल्फ कंटेम्पियस। सेल्फ कंटेम्पियस, सेल्फ कंटेम्पियस मतलब अपने आप को कमतरीन समझना। सर वोकैबुलरी नहीं समझना चाहिए, कैसा ऑप्शन करना? सेल्फ कंटेम्प्ट, सेल्फिश समझो या ऐसा कुछ समझो, सेल्फ के बारे में है। अपने आप को कमतरीन समझने वाले एक्सलेंट पीपल हो सकते क्या? नहीं हो सकते, राइट? तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या है? फेस, मतलब सक्सेस पीपल फेस सेटबैक्स। सक्सेस पीपल वही है जो जिंदगी में हारे हुए हैं, राइट? वही हो सकते हैं सक्सेस पीपल, वही हो सकते हैं जो जिंदगी में एक बार तो भी हारना उसको। चलो, आपको नहीं समझ में आया सेल्फ कॉन्टेम्प्ट का मीनिंग क्या है, समझ में नहीं आया, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दिए ना, तो आंसर 2 या 4 में से हो सकता है ना। तो आप आंख बंद करके भी अगर 2 या 4 पे लगा दे तो 50% चांस है ना आपके पास कि वो आंसर सही होने का। 4 ऑप्शंस में आप एक कुछ भी नहीं मालूम, 4 ऑप्शन का आइडिया ही नहीं है बोले तो आपको मार्क्स जाने के चांसेस है। लेकिन आपको 4 ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन दिया, बस ए नहीं तो बी, 1 नहीं तो 4, इसमें ऑप्शन चूज करोगे तो आपको ज्यादा चांसेस है आंसर करेक्ट होने की। अगर आंख बंद करके भी अगर 1 या 4 लगाया तो 50% चांस है कि वो आंसर करेक्ट होने के चांसेस है। 64th क्वेश्चन देखिए, द ट्रुथ ऑफ लाइफ इज। मैं पैसेज नहीं पढ़ा, पैसेज किसके बारे में भी नहीं मालूम, बट क्वेश्चंस देख के मैं आंसर कर रहा हूँ। पैसेज में कोई मतलब ही नहीं है, मैं जरूरत पड़े तो ही पैसेज पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ता हूँ नहीं, मैं ढूंढता हूँ, वर्ड्स को ढूंढता हूँ, ठीक है? चलो 64th क्वेश्चन देखिए, द ट्रुथ ऑफ लाइफ इज, लाइफ की जिंदगी का सच क्या है? अपॉर्चुनिटी, हाँ हो, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, हाँ हो सकता, मतलब एलिमिनेट नहीं कर सकते। पावर ऑफ, पावर, जिंदगी का मकसद पावर है क्या? नेगेटिव सेंटेंस, जिंदगी के मकसद पावर को क्या लेना देना है? टर्म्स ऑफ पीपल, टर्म्स ऑफ पीपल, जिंदगी का सच पीपल, लोग, क्या मतलब है? मतलब स्टूपिड आंसर है, स्टूपिड ऑप्शन। जिंदगी का, लाइफ की ट्रुथ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे पीपल कहाँ से आ गए? ऑप्शन कंप्लीट एलिमिनेटेड। टर्म्स ऑफ एक्सक्यूजेस, ये तो फालतू ऑप्शन है। एक्सक्यूजेस क्या है? बहाने, जिंदगी का सच बहाना है क्या? 100% दैट इज रॉन्ग आंसर। 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही बचा, दैट इज द करेक्ट आंसर। मैं पैसेज पढ़ा ही नहीं, without answering reading the question I am attending the passage. 65th क्वेश्चन देखिए, मैं 61, 62, 63, 64, 65 5 क्वेश्चंस बिना पैसेज पढ़े अटेम्प्ट कर रहा हूँ। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पैसेज, यू कैन चेक इट। 65th क्वेश्चन बोला, इफ यू कैन नॉट फाइंड सिचुएशन, अगर आपने, यू कैन नॉट फाइंड सिचुएशन यू वांट, आपको जैसा सिचुएशन चाहे वैसा आपको नहीं मिला तो आप क्या करते? दैट इज द क्वेश्चन। गिव अप, गिव अप मतलब क्या? हार मानना। अभी हार मानना सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नेगेटिव सेंटेंस, आपको जो सिचुएशन मिला वो नहीं मिला तो यू कैन नॉट गिव अप, आप हार नहीं मान सकते। नेगेटिव सेंटेंस, निकालो ऑप्शन उसको। लुक अराउंड फॉर हेल्प, आप हेल्प के लिए पूछो, बोल रहे आपको जो सिचुएशन नहीं है उसको आपके लिए लड़ना है, यू कैन नॉट आस्क हेल्प, नो। सबको हेल्प पूछो अपने सिचुएशन के वास्ते, दैट इज नेगेटिव, दैट साउंड्स नेगेटिव। तो सेकंड ऑप्शन आई एम एलिमिनेटिंग बिकॉज इट साउंड्स नेगेटिव। मेक इट, हाँ हो सकता। पोस्टपोन इट, आपको अगर सिचुएशन नहीं मिला तो पोस्टपोन करोगे, नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब फालतू क्वेश्चन है। पोस्टपोन को कौन करता? आपको जो चीज होना है उसके लिए लड़ना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। तो 3 ऑप्शन एलिमेंट होगा तो ऑप्शन क्या क्या बचा उसमें? मेक इट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिना पैसेज पढ़े आई अटेम्प्टेड 61, 62, 63, 64, 65 5 क्वेश्चंस बिना अटेम्प्ट करे आई अटेम्प्टेड यूजिंग कॉमन सेंस, यूजिंग कॉमन सेंस। आपको पैसेज पढ़ने ही 4-5 मिनट लग जाएंगे, उसमें वोकैबुलरी समझने में 2 मिनट लग जाएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन को समझेंगे, 10 मिनट्स आपको पैसेज में ही लगाएंगे। तो क्या मतलब है? मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मिनट एक क्वेश्चन है, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। और बहुत सारे लोग, चलो पैसेज तो हो गया, दूसरे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, एक्टिव पैसिव भी है, क्वेश्चन टैग भी है, बहुत सिंपल है, आई टेल यू। शी सेड टू मी, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में हमको बेसिक महारत हासिल नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, छोटा सा रूल। डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में वो हर छोटे बच्चे को भी मालूम। डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में अगर आई है, यू अगर दिया तो क्वेश्चन यू है तो आई होता, आई है तो माई सेल्फ होता, ये तो सिंपल आंसर ना। जैसा नाउ है, अगर क्वेश्चन में नाउ है तो आंसर में हियर होता,
देन नाउ है तो देन होता, ठीक है। दिस इज द बेसिक रूल्स। आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इन द स्पीच का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का आंसर बनाते, वो बनाए से आंसर ऑप्शन पर ढूंढते हैं। हाँ, मेरा बनाए से आंसर ऑप्शन 1 है क्या, सेकंड है क्या, थर्ड नहीं। स्मार्ट वे में करना। जैसा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, देखो यहाँ पे हियर है ना, उन्होंने आपने को हिंट दिया। डायरेक्ट इन द स्पीच में हियर क्या होता, हियर ही होता क्या, हियर का भी हियर होता क्या। डायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते ना, वर्ब का टेंस चेंज करते ना, देर होता। तो देर यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन में देर दिख रहा है आपने को, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में हियर है तो निकाल दो इसको, थर्ड ऑप्शन में हियर दिया निकाल दो, हो ही नहीं सकता, बाकी का पढ़ना ही नहीं है। देर देर में मतलब हो सकता आंसर 2 है या 4 है। और एक हिंट दिया क्या, क्वेश्चन ये देखना है। ये देखो हाउ लॉन्ग विल यू है, यू मिल गया आपने को। यू का भी यू हो सकता क्या, नहीं हो सकता ना। यू क्या होता अभी सेकंड ऑप्शन में, यू में यू आई हो गया, देखो यहाँ पे यू आई। तो आंसर क्या है यहाँ पे, बिना हमको डायरेक्ट इन द स्पीच के एक छोटी सी रूल मालूम हो गया तो हमको आंसर मिल गया। हम मैं पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ा गया, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे, मैं नहीं पढ़ा वो सब। मैं हियर का देर देख लिया, यू का आई देख लिया। और फोर्थ ऑप्शन में आई है क्या, आई दिया ही नहीं, देखो इसमें आई दिया ही नहीं, मतलब आई स्किप ही कर दिया उसका। तो ये 100% गलत आंसर। और करेक्ट आंसर विल बी, आंसर बनाया नहीं, सिर्फ ढूंढा वर्ड। वर्ड हियर का क्या हुआ, यू का क्या हुआ, बस 2 चीज देख लिया। बाकी के 2 ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए, हियर का हियर देखे। ऐसे स्टूपिड आंसर, स्टूपिड ऑप्शंस देता। आपको ऐसे क्वेश्चन मिस ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पहचानो बोल रहा है इसमें। ओके, आई हैव सम वर्क टू डू। टू है यहाँ पे, देखो टू 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 टू, हर जगह टू है। टू आया तो क्या करना, जनरली हम छोटे कोई, अगर आपको इंग्लिश बात करने भी नहीं आता तो आप ये जवाब दे सकते हैं। जैसा मैं जाना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई वॉन्ट टू गो। मैं खाना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू ईट। तो यहाँ पे क्या आ रहा, टू के बाद ईट, आई वॉन्ट टू गो, क्या आ रहा, V1 आ रहा। टू के बाद क्या आ रहा, V1 आ रहा। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। तो वर्ब के बाद टू के बाद V1 आ रहा। देखो यहाँ पे टू के बाद क्या आया, V4 आया, निकाल दो इसको। ये देखो टू के बाद V4 आया यहाँ पे, ये ऑप्शन भी निकाल दो। ऑप्शन 1 चला गया, ऑप्शन 4 चला गया। सिर्फ छोटा सा बेसिक कॉमन सेंस यूज करके डूइंग डूइंग चला गया। हम अब ऑप्शन क्या हो सकता है, 2 या 3 में हो सकता है। देखो आई हैव सम वर्क टू डू, आई हैव सम मुझे कुछ काम है करने के लिए, आई हैव सम वर्क टू डू। ये थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा, आई हैव ए सम वर्क, मुझे एक थोड़ा काम है बोलते क्या, ए मतलब एक, आई हैव एक सम वर्क है। क्या स्टूपिड है ये, मुझे एक काम है बोलते हैं, सम वर्क बोलते, आई हैव ए सम वर्क टू डू क्या है, डजंट मेक सेंस। तो 3 ऑप्शन रॉन्ग, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट आ रहे, ग्रामर पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, पूरा ग्रामर पढ़ लेती हूँ इंग्लिश की, नो कोई जरूरत नहीं। बेसिक कॉमन सेंस यूज करके आपको अटेंड कर सकते हैं। 64th क्वेश्चन देखो, चूज एग्जांपल ऑफ पोएटिक, ये इसमें अपना पेडागोगी से, चूज एग्जांपल ऑफ पोएटिक डाइवर्स कॉमनली यूज्ड इन शॉर्ट पोएम। हमको पूरा क्वेश्चन भी समझने की, वोकैबुलरी समझने की, शॉर्ट पोएम में क्या यूज होता है, कॉमनली यूज्ड। ये देखो कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड, एक कॉमनली यूज तो हर कोई समझते। शॉर्ट पोएम, शॉर्ट पोएम में क्या कॉमन यूज करते बोल रहा हूँ बस क्वेश्चन। बुलेट पॉइंट्स, पोएम में बुलेट पॉइंट्स क्या है, स्टुपिडिटी है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। राइम स्कीम, हाँ हो सकता। फुट नोट्स, पोएम में फुट नोट्स कहाँ रहते, कभी देखे पोएम के नीचे फुट नोट्स। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट तो बुक के सेकंड पेज पर रहता कि क्या क्या बुक में इंक्लूडेड है, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन स्टूपिड है। आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखो 18 देखो, व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या है नहीं बोला, मैं इससे पहले बोला जो ऑप्शन सेम दिखते हैं मे बी वो आंसर हो सकता। देखो यहाँ पे बॉयज बॉयज सेम दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन 1 और 4 में ही है आंसर। 2 3 हो ही नहीं सकते, 90% चांस, 90% चांस। यहाँ देखो प्लूरल क्या है पूछ रहा, बॉय बॉयज, बॉय बॉयज मतलब एक से ज्यादा लोग, बॉयज मतलब वो लड़के का। जैसा ये वो लड़के का शू है, दिस इज बॉयज शू। वहां पे कुछ लोग बॉयज है, देर आर सम बॉयज, ये वाला बॉयज, देर आर सम बॉयज। ये वो लड़के की पेन है, दिस इज बॉयज पेन, ठीक है। आंसर मिल गया आपको, प्लूरल क्या है, राइट। लुक एट द 82th क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग बोलो तो बहुत सारे लोग, अरे नहीं भाई बहुत मुश्किल है, 2 3 दिन लगा देते, 2 3 घंटे लगा देते। नो, कुछ करने की जरूरत नहीं,
स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन टैग पे आप इंग्लिश के मटेरियल देखेंगे, 3-4 पेजेस वही क्वेश्चन टैग रहता है, 1 मार्क के लिए 4 पेजेस कौन पढ़ता, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है। देखो कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन टैग, फिर भी आंसर कर सकते हैं इसका। देखो कैसा करेंगे, गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अब गर्ल की बात कर रहा, गर्ल की बात कर रहा तो यहाँ पे ही है, देखो यहाँ पे ही कहाँ से आ गया, गर्ल की जब बात गर्ल की होती, ही कहाँ से आया, ही को निकालो पहले, तो 3 ऑप्शन में सी है। और एक बात नोटिस करें तो मैं आप इससे पहले बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑप्शंस एक जैसे दिखते वो आंसर होने के चांसेस है। यहाँ पे डजंट है मतलब आंसर क्या है, 2-3 में ही है आंसर, डजंट, ठीक है, राइट। जब ही नहीं हुआ तो आंसर क्या है, शी है। आया समझ में? सेम जो दिखने वाले आंसर में मोस्टली 90% वो रहता। यहाँ पे गर्ल की बात कर रहा, क्वेश्चन में देखो गर्ल है, तो आंसर में ही कहाँ से आता, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन टैग भी हम कॉमन सेंस यूज करके अटेम्प्ट करें। मेरे को रूल मालूम भी नहीं है, अगर अगर आपको रूल्स आते ही नहीं, याद नहीं है, तो स्टिल यू कैन अटेम्प्ट इट। क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ के भी यू कैन अटेम्प्ट इट। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ो, पढ़ना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन टफ देता, क्वेश्चन पेपर टफ बना, हम पढ़े से नहीं आते, तब ये टेक्निक यूज करना, तब आप कॉम्पिटिशन में आगे रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर टफ है तो क्या करना, ये है ईजी है तो सबको होते हैं ना, आप क्या है, सब हर कोई पास कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सेस में सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके नुकसान क्या है, सेल्फ प्रिपरेशन करने में आप अवेयर नहीं रहते, प्लानिंग नहीं रहती आपको, इंग्लिश कब पढ़ना है नो आइडिया, कभी सुबह पढ़ रहे शाम में पढ़ रहे, नो आइडिया, टेंशन मतलब क्या हो रहा, मतलब सेल्फ प्रिपरेशन में मैं सही डायरेक्शन में जा रही नहीं जा रही हूँ, कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग सेल्फ प्रिपरेशन में, ये डिसएडवांटेज है, सेल्फ प्रिपरेशन के नुकसान है। प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता उनको, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन में। और कंपटीशन का अवेयर नहीं है, मतलब बाहर कितने लोग कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या है, नो आइडिया, बस खुद पढ़ ले रहे हैं, उनके 4-5 फ्रेंड सर्किल से उन उन लोगों में डिस्कस कर ले रहे हैं। हाँ हाँ चलो मेरे 4 सहेलियों से तो मैं बेस्ट हूँ, मैं 4 फ्रेंड से तो मैं बेस्ट हूँ, बस उसमें ही खुश हो जा रहा है। कंपटीशन बाहर कितना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन कितना है, वो नहीं देख रहे, ठीक है। तो सेल्फ प्रिपरेशन आई डोंट थिंक इज द करेक्ट आंसर। और बहुत सारे लोग हैं, चलो सेल्फ प्रिपरेशन नहीं हो रहा बोल के फ्री कोचिंग बहुत देने वाले हैं, जमात वाले या कोई भी, हर जगह आजकल क्या है, टेट बोलते साथ भी फ्री कोचिंग आ जाओ बोल रहे। अरे गवर्नमेंट टीचर से हम लोग अब ये पढ़ाते वो पढ़ाते वगैरह पढ़ते। आपको एक चीज कॉमन सेंस की बात है, आप ध्यान से देखो तो गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ा रहे बहुत सारी जगह फ्री कोचिंग, हम देखते आ रहे 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो जो भी है ना, 15 साल का जो क्वेश्चन पेपर है और आज का क्वेश्चन पेपर है, बहुत टफ हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। क्वेश्चन पेपर 15 साल पहले जैसा पूछा वो वैसा नहीं पूछ रहा। इवन स्कूल में भी सीसी मेथड आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में भी नहीं आ रहे, ऐसे 1 ऐसे 2 एग्जाम्स में भी नहीं आ रहे, तो क्या आपको टेट में आएंगे। तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे ना, उनको अवेयर रहना चाहिए कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा, करंट नए टेक्निक क्या है, आपको जो भी पढ़ा रहे ना उनको अवेयर होना चाहिए, वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। एंड आर इंस्टीट्यूट, हम लोग 3-4 साल से हम लोग यही हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स, टीएसपीएससी ग्रुप 1 ग्रुप 2, एपीपीएससी ग्रुप 1 ग्रुप 2, हम हमारा 3 साल का पूरा, हमारी टीम पूरी इसमें लगी हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। तो जो फ्री कोचिंग दे रहे हैं उन लोगों को पहले तो अवेयरनेस नहीं है, ट्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है, वो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा देते ना, प्रैक्टिस कराते क्वेश्चन, हाँ ये कॉन्सेप्ट है अब बेटा पढ़ लो बोलते, ट्रेंड क्या चल रहा, क्वेश्चंस नए नए क्वेश्चन अलग अलग किस्म के ट्विस्ट टर्न्स करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई अवेयरनेस नहीं, नो एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस नहीं है कॉम्पिटिशन। 10 साल 15 साल पहले उन लोगों को जॉब मिल गई, बस आराम से है, बस कोई दूसरा एग्जाम लिख रहे भी नहीं, उनको ट्रेंड्स भी नहीं मालूम, वही पढ़ाई से टेंसेस वही ग्रामर पढ़ाते जा रहे। सो वो दैट डजंट मेक, डजंट सूट यू। ये आजकल के ज़माने में, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओल्ड मेथड नहीं जमता, ओल्ड स्टाइल ऑफ कॉन्सेप्चुअल, वो लोग बस वही ओल्ड स्टाइल जैसा क्वेश्चन टैग है बोल तो क्वेश्चन टैग के पूरा टेंसेस पूरा समझा देते, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो, ये वही स्मार्ट वे में आंसर करना नहीं सिखाते फ्री कोचिंग से, राइट। फ्री कोचिंग मतलब क्या है, उनको पहले तो पेमेंट ही नहीं मिलता, तो आपको क्या मोटिवेशन रहता आपको पढ़ाने के लिए, राइट। नो प्रैक्टिस क्वेश्चन ना, वो लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देते ना स्लिप टेस्ट लेते, कुछ नहीं करते, बस टाइम पास है। ऑफलाइन बुलाते, 3 घंटे क्लास बोलते, जाने आने में आधा घंटा चले जाता, आके रेस्ट करने में आधा घंटा चले जाता, वेस्ट ऑफ टाइम, प्रोकास्टिनेशन, जाएंगे देखेंगे करेंगे, ऐसा सिलेबस पूरा कंप्लीट करते क्या, नो। सो दैट इज द डिसएडवांटेजेस। So I want you to join us
हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आने वाले 30 डेज आप जुड़े रहें। यू न्यू कि हम टेक्निक्स हमारे जितने भी हमारे प्रॉपर प्लानिंग है, आई वांट यू टू जॉइन अस। हम हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको 30 डेज में वी विल टीच यू हाउ टू स्कोर ड्रास्टिकली। 30 somebody speaking mute। ओके, इफ यू जॉइन अस 30 डेज में यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट। क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 16 से 17 क्वेश्चन करें, उसमें से यू नो आपके सामने एग्जाम्पल्स थे, हम आपके सामने सॉल्व करें क्वेश्चन कैसा करें, और विद इन 5 to 10 सेकंड्स में हम सॉल्व करें, राइट। तो यू कैन 100% यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। किसी को 8, 10, 12 आ रहे हैं इंग्लिश टेट में, दे कैन गो एटलीस्ट 22, 23, 24 ये दे कैन डू। और 1 मार्क की इंपॉर्टेंस मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं। 1 मार्क से 89, 79 आके फेल हो इस वाले, और 1 मार्क से DSC जिस परसों ग्रुप 4 एग्जाम हुआ 120 मार्क्स, ऑलमोस्ट 40-50 लोगों को एक ही मार्क है। अब 40 लोगों को 50 लोगों को जॉब दे देते क्या? नो। तो आपको 1 मार्क्स अगर 121 की जगह 122 आते तो आपको जॉब मिलती थी। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मार्क। तो आपको लाइट नहीं लेना है। अगर आप हमको ज्वाइन करेंगे, हम आपको क्रिस्प नोट्स देंगे, हम आपको 200, 300 पेजेस वाली मटेरियल नहीं देंगे। हमारी मटेरियल आपको सिर्फ 70 पेजेस के देंगे। 70 पेजेस, 20 टॉपिक्स, एक एक टॉपिक पे 3 नोट्स, फर्स्ट पे कॉन्सेप्ट, सेकंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, थर्ड पे प्रीवियस पेपर, खत्म। 70 पेजेस में इंग्लिश खत्म। 70 पेजेस है, उसको बोथ साइड का 30 पेजेस ही होते। 30 पेजेस में इंग्लिश खत्म, 30 मार्क्स, 30 पेजेस 30 मार्क्स। ऐसे स्मार्ट वे में वी विल टीच यू, वी विल गाइड यू। डेली आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑब्वियसली रहेंगे, डेली स्लिप टेस्ट लगाएंगे हम। इफ यू जॉइन अस नो, वी विल गिव यू डेली स्लिप। आप ग्रुप में देख रहे हैं, लाइक वी वर शेयरिंग सम वीडियोस, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, वी वर एंगेजिंग विद यू, राइट। आप कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, लाइक यू कैन इजीली एक्सेस। 1 मिनट का वीडियो रहता है, यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। स्लिप टेस्ट का रहता है, पोल्स रहता है, यू जस्ट, आप कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, या लेट के हैं, यू कैन आंसर इट। ऐसा नहीं है कि आपको बुक निकाल के ही पढ़ना है। यू हैव टू लर्न। कैसा पढ़ रहे, कैसा सीख रहे, डजंट मैटर, सीख रहे इज इम्पोर्टेंट। इफ यू जॉइन अस, यू विल लर्न न्यू टेक्निक्स। नए नए टेक्निक्स आपको सीखने के मिलते हैं। अभी तो मैं सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक, ये 2-3 एरर डिस्कस करा, बहुत सारे टेक्निक्स और है। विल टीच दोज टेक्निक्स ऑल्सो। मतलब जहाँ पे हम स्लिप टेस्ट लाएंगे, इसको ऐसा आंसर कर सकते हैं, वैसा आंसर कर सकते हैं, वैसा आंसर कर सकते हैं। या वी विल टीच यू ऑल द न्यू टेक्निक्स। या देन पेडागॉजी के भी बहुत सारे नोट्स है। वी विल गिव यू ऑल द पेडागॉजी नोट्स। पेडागॉजी जितना भी नोट्स है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। वो मटेरियल ये डोंट नो, वी विल गिव यू द पेडागॉजी नोट्स आल्सो। Doubt solve. If you have any doubts, we can also solve your doubts. Whenever is required, you can just post a message. We will try to answer your doubts also. Vocabulary through short videos. Vocabulary हमको बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक्स में ही आते हैं ऑब्वियसली, वोकेबलरी 3rd से लेकर 10th तक। बट हम आपको उसको थोड़ा और इजीली करने के लिए, जैसे हम आप वीडियोस देखे कल, ड्यूरिंग, अनटिल का हम वीडियो डाले, लाइक दैट वी विल टीच यू, वी विल एंगेज विथ यू। हम कॉन्सेप्ट को छोटा, विद इन 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट समझ के आपको अटेम्प्ट करना। हम वी विल मेक यू शार्प। वी विल ज्यादा उसको टाइम नहीं लेके, कम टाइम में वी विल मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। इफ यू वांट एनी रिवीजन काइंड ऑफ सपोर्ट, वी विल आल्सो गिव द सपोर्ट। तो अभी 30 डेज में वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट एवरी डे स्लिप टेस्ट, राइट। अगर आप एवरी डे 30 डेज है, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो 15 क्वेश्चंस एवरी डे वी विल पोस्ट यू। 15 क्वेश्चन का स्लिप टेस्ट हम एवरी डे करेंगे। तो एंड ऑफ 30 डेज 450 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। डेली वोकेबलरी, इसमें सिनोनिम्स, ऑन्टोनिम्स, सिनोनिम्स 5, ऑन्टोनिम्स 5, मीनिंग्स 5, वो भी 15 हम डेली डालेंगे, वो भी 30 डेज डालेंगे। तो 450 आपको वोकेबलरी भी। ये वोकेबलरी हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से लेंगे, बाहर से नहीं, टेक्स्ट बुक से लेके देंगे। और संडे ऑब्वियसली आपको 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन का ग्रांड टेस्ट लेंगे इंग्लिश का, वो 4 संडेज रहते, तो वहां से 120 क्वेश्चन है। तो आपको 30 डेज में हम आपको 1020 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। 1020 क्वेश्चन, 1000+ क्वेश्चन। ये 1000 क्वेश्चन ये प्लान्ड है। अनप्लान तो आप कल देखे पोल्स हम कैसा डाल रहे हैं, पोल्स डाल के आपको एंगेज करते हैं, वो क्वेश्चन मैं अकाउंट ही नहीं करा इसमें, राइट। डेली स्लिप टेस्ट, डेली वोकेबलरी और डेली संडे ग्रांड टेस्ट। हम 1000+ आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग इन
coming 30 days अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो this is the plan which we are guiding through. We want to guide you in a proper manner. एक proper plan के हिसाब से we want to guide you. उधर इधर नहीं भटको, फ्री कोचिंग उधर इधर, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम. 30 डेज है, जस्ट यूटिलाइज इट. हमको कम टाइम में जल्दी स्कोर करना है, मार्क्स ही तो होना है, राइट? इंग्लिश में महारत नहीं होना है ना, मार्क्स होना है. विल गाइड यू. इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मार्क. आई नो लाइक कि 1 मार्क अगर आपको हम 30 डेज का, डू यू थिंक 30 डेज अगर आप 30 डेज हमारे साथ जुड़ेंगे तो डोंट यू थिंक आपको एक 10 मार्क्स का भी इजाफा हो? अगर आपको 10 आते थे इंग्लिश में पहले तो 20 आ गए, तो 10 मार्क्स का तो इजाफा है ना. तो अगर आपको 10 मार्क्स भी, अगर वर्स्ट केस में अगर 10 मार्क्स भी इजाफा हो गए, 10 अगर आपको पहले प्रीवियस स्टेट में 10 मार्क्स इंग्लिश में आए, अब जो हमें ज्वाइन करने से 20 मार्क्स आए, तो 10 मार्क्स का इजाफा होने से आप कितने लोगों से हेड रहते? यू थिंक अबाउट इट. 10 मार्क्स इजाफा होने से यू विल बी अहेड ऑफ लॉट ऑफ पीपल. मैं आपको बोला 1 मार्क का इंपॉर्टेंस है ना. आपको 121 ग्रुप 1 आप रिजल्ट देखिए, शायद एक आप देख लीजिए, फिर पीडीएफ ओपन करके देखिए. 1 मार्क 121 जो भी मार्क है उस पे 1 मार्क आए वाले, लाइक 15 मेंबर्स, 20 30 40 50 मेंबर्स एक ही नंबर लाए, सबको जॉब नहीं मिलती, राइट? हाँ. सो अब इतनी मेहनत है, हमारी टीम है, देयर इज अ होल लॉट ऑफ टीम आपके पीछे, आपके लिए स्लिप टेस्ट बनाने वाले टीम है. आपको स्लिप टेस्ट को एवेलुएट करके लीडर बोर्ड हम आपको बनाएंगे कि स्लिप टेस्ट 1 में कौन टॉप करे, कौन सेकंड आए, कौन थर्ड है. इसे आपको कंपटीशन का अवेयरनेस रहता कि आप कहाँ स्टांड करते. बाकी के लोग आपको उससे मोटिवेशन भी आ रहा है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रही, राइट? मोटिवेशन आता आपको, लीडर बोर्ड स्लिप टेस्ट कर रहे, फर्स्ट कौन आए, सेकंड कौन आए, थर्ड कौन आए. वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हम आपको एंगेज करेंगे, राइट? तो ये सारा क्वेश्चन हम आपकी मेहनत, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे. क्वेश्चन बैंक्स से कोई क्वेश्चन हमको अच्छा लगा, ट्रेंडिंग में है, लाइक मतलब ट्रेंड्स, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में से ट्रेंड्स आए तो विल गिव यू दोस क्वेश्चंस आल्सो. सो इतनी सारी मेहनत है, वी कैन नॉट गिव ऑल दिस बेनिफिट्स टू यू फॉर अ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? इतनी सारी मेहनत है, वी वांट यू टू क्वालिफाई टेट, लेकिन इतना सारा हम फ्री में वी कैन नॉट डू, राइट? और जितना कंटेंट, जितना क्वालिटी ऑफ कंटेंट में वी आर प्रोवाइडिंग, नो, it is bahar outside of market. We can sell it for 1999 rupees. 1999 rupees में we can sell it off, right? But already आप 2000 रुपए टेट के लिए पे कर दिए, पेपर 1 पेपर 2 बहुत इंक्रीज हो गया, और बहुत सारे लोग 50-60% जो भी हमें रिस्पॉन्ड करे वो लोग स्टूडेंट्स है, दे आर नॉट अर्निंग, राइट? सो वी डोंट वांट यू टू, हम नहीं चाहते कि आप 1999 पे करें हमें, तो वी विल कट इट डाउन. वी आर गिविंग यू लाइक फ्लैट 50% ऑफ. You can get our course in 999. नहीं सर 999 भी बहुत हो जाता, इट इज नॉट नेसेसरी, लाइक 30 डेज है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट. 50% भी बहुत कम है. इफ यू से सो फर्स्ट 60 मेंबर्स, ये वेबिनार होने के बाद 60 मेंबर्स, फर्स्ट 60 मेंबर्स, अगर आप 60 मेंबर्स के लिए ही हम और भी इसको कम करेंगे, वी आर गिविंग यू 75% ऑफ. 1999 पे 75% ऑफ वी आर गिविंग यू for first 60 members only. First 60 members, 75% off. We will give all this 30 days course plan, online coaching, material and everything. We will give it to you for 499 rupees. 499 rupees. 499 rupees is only for the first 60 members. And we are accepting only 60 members. हमको 100 लोग नहीं चाहिए, हमको 200 लोग नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा वर्क बढ़ता हमारा, राइट? हमको 60 मेंबर्स ही चाहिए. 60 मेंबर्स को हमको क्वालिफाई कराना, दैट इज आवर मोटिव, राइट? अब देखो फ्री ही रहता, wherever you go free रहता, right? If you pay something, will motivate you. We will 60 members, we have a team, 499 rupees for first 60 members. जैसा webinar close होता, the payment process I will tell you कि how to join and everything, but do not think about the money. 499 rupees is nothing for you. आप कितना इससे फायदा हो सकता है, कितना आप इससे बेनिफिट हो सकता है, अगर आपको 10-15 मार्क्स भी आपको इम्प्रूव है ना, तो यू विल गेट क्वालिफाई. और बीएससी में जितना पेपर 1 लिख रहे हैं ना, जो भी पेपर 1 लिखने वालों को बोल रहा हूँ मैं, कितने सारे खाली पोस्ट है. जैसा बीएड वालों को इनएलिजिबल करने से ओनली डीएड वाले पेपर 1 लिखने के एलिजिबल हो गए, और इतने सारे पोस्ट है, यू कैन नॉट इमेजिन. आप बस बीएससी लिखो, यू विल गेट ए जॉब. लेकिन बीएससी लिखने का टेट तो क्वालिफाई होना जरूरी है ना. गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पेपर 1 वालों के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और पेपर 2 वालों के लिए पहले 5000 पोस्ट थे, अभी 10,000 पोस्ट कर दिया, तो डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पेपर 2 आई शुड. तो डू नॉट वरी अबाउट मनी. आपको अगर जॉब मिल गई तो फर्स्ट सैलरी विल बी ऑफ 50,000 प्लस, एंड 499 इज नथिंग टू यू, राइट? सो आवर होल टीम इज बिहाइंड यू.
हमारी टीम है, वी विल गाइड यू, विल गिव यू क्वेश्चंस, विल टेक क्लासेस, विल क्लियर ऑल योर डाउट्स for 499 rupees and 75% off whatever the quality we are giving, no, that is nothing. मतलब 75% is like, but हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, स्पेशली जो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से है, जो इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, हम ऐसे लोगों को टारगेट करके वी वांट देम टू क्वालिफाई टेट, ठीक है, स्पेशली पेपर 1 वालों के लिए। अगर हम चाहते हैं कि आप टेट क्वालिफाई होकर डीएससी लिखो, क्योंकि पेपर 1 एसजीटी पोस्ट बहुत बहुत ज्यादा है, आप जॉब लिखो बस जॉब है, क्योंकि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग बीएड कर लिए, डीएड नहीं कर रहे, आपको मालूम है, मैं बताने की जरूरत नहीं। पेपर 2 वालों के लिए भी कंपटीशन ज्यादा है, 10,000 पोस्ट है, 499 इज नथिंग टू यू, यू जॉइन अस इफ यू वांट टू जॉइन अस, अगर आपको ज्वाइन करना है। सो दिस इज द प्रोसेस। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नंबर, वो नंबर पे आपको 499 रुपीज पे करना है। फर्स्ट यू हैव टू पे थ्रू मोबाइल नंबर पे आपको फोन पे करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके ये जो भी स्क्रीन पे दिखा हुआ नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। पहले ये नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और उस पर व्हाट्सएप करना है कि हम पेमेंट कर देंगे, राइट। पेमेंट करने के बाद हम आपको वो पेमेंट कंफर्मेशन करके आपको एक एडमिशन फॉर्म का लिंक भेजेंगे। वो एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना रहता, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से हम एडमिशन लेंगे। जैसा फर्स्ट 60 सीट्स फिल हो गए, वी विल क्लोज द एडमिशन। 60 मेंबर्स के बाद जो भी पेमेंट्स आए ना, हम लोग उसको रिफंड कर देंगे, पे बैक कर देंगे, राइट। 60 मेंबर्स आए तक हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद वी विल रिफंड द मनी कि 60 मेंबर्स हो गए, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी एडमिशंस करके वी विल रिफंड योर मनी, राइट। सो आई वांट यू टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। वेबिनार में 350 मेंबर्स रजिस्टर होके है, राइट। तो 60 सीट्स मतलब विद इन 1 आवर, विद इन हाफ एन आवर 60 सीट्स फिल होने के ह्यूज चांसेस है, राइट। So please note down, take a screenshot. This is the QR code you can scan and you can pay. And this is the number. You can use PhonePe and Google Pay also. You can just pay it and send a screenshot to this particular number, 8143 and wait for the admission form. Okay. And I want to close this. There is a famous quotation: education is not only the right but duty of every Muslim. ठीक है, तालीम हासिल करना आपकी राइट नहीं है, आपका हक नहीं है, इट इज ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। यू हैव टू पे फॉर योर एजुकेशन। whoever follows the path to seek knowledge therein, God will make easy for him। आप एक स्टेप एजुकेशन हासिल करने के लिए लेंगे तो अल्लाह विल हेल्प यू to achieve your dreams, right? You have to take a step. You don't step back. Don't step back. Take a decision. 499 is nothing for you. Nothing for you. वेबिनार होने के बाद ग्रुप में पेमेंट का जो क्यूआर कोड है, पेमेंट का नंबर है, वी विल शेयर इट इन द ग्रुप आल्सो। जैसे ही उसको आया, ट्राई टू पे एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि 60 सीट्स के बाद वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी पेमेंट। वी डोंट वांट 100 मेंबर्स, वी डोंट वांट 80 मेंबर्स, वी वांट ओनली 60 मेंबर्स। 60 मेंबर्स ही होना है मेरे को। 60 मेंबर्स को ही हम लोग टारगेट करने वाले, राइट। और जो भी पेमेंट करेंगे, एडमिशन कैंसिल होगा, उनको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जो भी अभी एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो पूरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। वो सिर्फ वेबिनार के लिए क्रिएट करें और उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई वीडियोस नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। वो ग्रुप्स जो भी अभी फिलहाल है टेट वेबिनार के, वो पूरे वेबिनार के बाद डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजन एवरीथिंग। जो भी एडमिशन लेंगे उनके लिए एक सेपरेट नया ग्रुप क्रिएट करेंगे हम। 60 मेंबर्स का ग्रुप होगा। देयर वी विल बी पोस्टिंग क्वेश्चंस, स्लिप टेस्ट वगैरह जो भी मटेरियल है हम वो ग्रुप में, जो पेमेंट करें वो ग्रुप में हम पोस्ट करेंगे, राइट। सो आई वांट यू टू हरी अप, जल्दी से जल्दी यू कैन बुक योर सीट्स। 60 मेंबर्स वी आर टारगेटिंग इट, राइट। 499 रुपीज वी आर गिविंग यू 75% ऑफ फॉर, क्योंकि आप लोग वेबिनार अटेंड करें, ठीक है। जो अटेंड नहीं करे, आई थिंक इट्स देयर लॉस। सो आई वांट यू टू प्लीज consider subscribing us, consider joining us. You will be benefited 100%, right? क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाए, एग्जाम्पल्स दे के समझाए, प्रीवियस क्वेश्चंस लेके समझाए, ठीक है। क्या लोग गलती कर रहे हैं वो समझाए, क्या आपको नहीं करना चाहिए वो समझे, ठीक है। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। यू जॉइन अस, वी विल टेक केयर ऑफ, वी विल टेक केयर ऑफ यू कि कैसे करना है, क्या करना है। जो भी इंग्लिश से डर लग रहा, वोकैबुलरी से डर लग रहा, ज्यादा मेहनत मतलब कैसा करना, सेल्फ प्रिपरेशन से हो ही नहीं सकता, फ्री कोचिंग से हो ही नहीं सकता। या आप भी गलती भी मत करो फ्री कोचिंग ज्वाइन करने की, या फिर
सेल्फ प्रिपरेशन करने के। आपको मैं समझाया कि क्या क्या नुकसान आता है। इट इज अप टू यू, डिसीजन आपका है। जो भी सब्सक्राइब करे वी विल वेलकम यू, जो भी सब्सक्राइब नहीं करते, जो भी हम पे ज्वाइन नहीं करते, ऑल द बेस्ट फॉर यू। आई होप आप भी अपनी मेहनत से क्लियर करें। So that's what we want to say. So this is the payment link and everything. So Mazhar, just share the payment and this thing in group. You will get the payment link in the group. Okay. Anything guys you want to tell, you can tell. I'm done with the session. Yeah, okay, Thank you. fine. Thank you for joining. It was everyone. very Thank you. yeah. Yeah. Firstly, assalamu alaikum to And all, whoever has and doubt, one second. Whoever yeah, has doubt, and like the whole English course, I will be teaching. Right, my team will support me in drafting the questions, evaluating your ranking system, everything. My team will take care of it. But whatever the subject, I will be teaching it. Right? Okay, guys, you can. yeah. Assalamu alaikum to all members, all students who are attended this class. And what about class means from my side, it was very excellent, and I was very much appreciate to you, Isha sir, for your efforts. Okay, so the thing is actually ये क्लास लाने का मकसद ये है कि हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस एकेडमी जो है ना, एक सिविल सर्विसेज एकेडमी है जो सिविल सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस एंड सेंट्रल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स रहते हैं प्रिपेयर कराते हैं हम। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है कि जो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स है या फिर अदर कम्युनिटी के मेंबर्स है, जो भी फेस कर रहे चैलेंजेस लेके बीएड के टेट को लेकर के एग्जाम्स के लिए, तो मैंने बहुत सारे बच्चों के पास से ये देखा है कि इंग्लिश में वो लोग को कम मार्क्स आ रहे हैं, और क्या है अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, ओके, इनमें बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो हम लोग ने बहुत सोच करके ये चीज़ को स्टार्ट किया है कि बच्चों को जो भी स्टूडेंट्स जो दोज आर फेसिंग फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, सो उनके लिए कुछ एक ऐसा कोर्स लेके आए जो बहुत ही कम मतलब कम प्राइसिंग में रहे और बहुत अच्छा क्रिप्सी रहे। देखिए हम लोग आईएएस आईपीएस को प्रिपेयर कराते, सो इट्स जस्ट ये हमारे को इट्स लाइक ए स्पून फीड के, मतलब बहुत सारा एकदम आसान है कि हम सबको इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे लेकर के खेलें। ठीक है, तो मोहम्मद इरशाद जो है ना एक एक्सलेंट फैकल्टी है, ये बहुत एमएससी इन एमए इंग्लिश करके है, और इनका क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड एजुकेशन, और ये खुद जो है सिविल सर्विसेज के लिए 3-4 टाइम्स अब तक अटेंड किए हैं, जिसमें ये पेपर 1 पेपर 2 बहुत बार क्वालिफाई भी किए हैं। तो द थिंग इज कि मेरा बोलने का मतलब ये है, एक्चुअली ये कोर्स 2000 रुपये का है, बट वी आर गिविंग 499 जस्ट बिकॉज ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स शुड ज्वाइन विद अस। हमारा जो सिविल सर्विसेज का जो प्रोग्राम रहता ना, एवरी ईयर उसका नोटिफिकेशन आता जिसमें 8 to 10,000 स्टूडेंट्स फॉर्म भरते, उसका एग्ज़ाम लिखते, ऑन ओवर 500 स्टूडेंट्स को जो है सो एग्ज़ाम में से हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते। 500 स्टूडेंट्स में 100 स्टूडेंट्स को जो है ना सिलेक्ट करके फ्री कोचिंग देते, लाइक उनको खाना पीना रहना और एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड देम फ्री, शेल्टर एवरीथिंग। उनका खाने पीने का 1 रुपया का पैसा कुछ नहीं लेते वो लोग को, क्योंकि हम उनको आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स में से हम 100 स्टूडेंट्स को छाक करके लेके आते। ठीक है, तो हमको मालूम है कि सीरियस एस्पिरेंट्स कौन है और जो है ना फ्री के कौन आते। तो हमारा ये मेन मकसद 499 इज नथिंग फॉर अस, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग ए मेनी स्टूडेंट्स लॉट्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडिंग ऑन देम, दिस इज ए नथिंग टू अस। बट द थिंग इज कि हमें सीरियस एस्पिरेंट्स जो है ना, जिसको चाहिए इंग्लिश की क्लास, जो दोज आर फेसिंग इंग्लिश की क्लास, वो लोग ही जॉइन हो। जॉइन कब होते हैं? जब वो लोग सीरियस है तभी तो वो लोग पे करेंगे ना, पे करके ही जॉइन होंगे। तो हम लोग ऐसा हवाईबाजी में मतलब फुकट में सबको दे दे के 100-200 लोगों को देना, फिर उसमें ये वो करने का नहीं है। और ये तो इंग्लिश की क्लास रही। अगर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स दे कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप, वॉट एवर यू हैविंग क्या बोलते हैं रिसोर्सेस है, आप लोग आपका नेम नंबर जो भी मैथ्स की क्लासेस चाहिए बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को चाहिए मैथमेटिक्स का क्लास सेम टू सेम एज इट इज़, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच यू लाइक जो सिविल सर्विसेज के सीसेट के पेपर को जो पढ़ाते सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए, वैसे सर को ही हम आपको करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ one more thing, guys, I'm just adding you. The many of students are doing payments and they're calling. Do not call. We will respond to you. Do not worry about the payments. We will check and we will confirm you. Okay? क्योंकि अभी webinar खत्म होगा. A lot of people are like doing payments. I'm receiving a lot of calls here.
So Yeah. please do not call. We will respond to you. We will respond to you on message. We'll definitely respond to you. Do not worry about that. Don't hurry. Don't Don't hurry. We'll do that. Please Don't respond. hurry. It will take some time. It will take some time. We'll definitely come back to you. We'll definitely अंडरस्टैंड, क्योंकि आप वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज अ टाइम, वहाँ पे टाइम है, फोन पे हिस्ट्री में टाइम रहता है, एज पर द टाइमिंग ओनली विल टेक एडमिशन। आप ऐसा मत सोचो कि सर हम पेमेंट पहले कर रहे थे, वी आर नॉट एडमिटेड इन 60 मेंबर्स, मत सोचिए, टाइमिंग के हिसाब से विल टेक दैट। फोन पे टाइमिंग रहता है, वो टाइमिंग के हिसाब से विल टेक द फर्स्ट 60 मेंबर्स, डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। प्लीज डू नॉट कॉल, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू, we will respond to you in some time, okay? Do not worry, just pay the screen, we will send you the admission link form, okay? वहाँ पे भी आपको यहाँ एडमिशन फॉर्म भरना रहता, आपका पेमेंट कंफर्म करने के बाद हम लोग आपका एडमिशन फॉर्म भेजेंगे, राइट? ओके, एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही आपको पेमेंट, वो जो लिंक आती है आपको, ठीक है? वी विल एक बार सबको देख के पेमेंट टाइमिंग वगैरह देख के आप हमको कंफर्म करना रहता, सो इट विल टेक सम टाइम, ओके? प्लीज शाम तक, यू नो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमारी टीम बैठ के उसको एनालाइज करने में तो टाइम लगता है, ठीक है? सुबह से हम लोग वी आर वरीड अबाउट दिस वेबिनार, सो प्लीज गिव अस सम टाइम, ओके? डू नॉट वरी, आपका पेमेंट एवरीथिंग नहीं आता, अगर आपका एडमिशन कैंसिल भी हुआ तो वी विल बी पेइंग यू बैक, हम लोग रिफंड कर देंगे, देयर इज नथिंग टू वरी, ओके? एक्सक्यूज मी सर। या यू हैव एनी क्वेश्चन? जी, अभी मैक्स के लिए आप कॉल करो बोले थे ना, तो इसके यही नंबर पे कॉल करके बात करना है मैक्स की क्लास के बारे में? कॉल नहीं करना है, मैथ्स के लिए कॉल नहीं करना है। लाइक अभी तो ये हो गया ना इंग्लिश का, जो व्हाट्सएप आप ऑलरेडी जो व्हाट्सएप पे आपके पास जो ग्रुप ऐड किए ना, उस पे आप लोग मैथमेटिक्स की जिसको भी क्लास चाहिए ना, वो लोग मैसेज कीजिए कि वी वांट मैथ्स क्लास, ओके? हमें मैथ्स की क्लास चाहिए बोल के आप लोग जस्ट मैसेज पिंग कीजिए, हम लोग आपको मैथ्स के ग्रुप में ऐड करते, देन वी हैव मैथ्स का एक सेपरेट सेशन रहेगा, उसके बाद हम लोग मैथ्स का भी एज यूजुअल आपको डेमो रहेगा, एवरीथिंग रहेगा, देन यू कैन ज्वाइन। तो अभी ऐसा कि इंग्लिश में हम मैथ्स मिला रहे, जो इंग्लिश का चाहिए वो लोग इंग्लिश का लीजिए, जिसको भी मैथ्स की क्लास चाहिए वो लोग मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास चाहिए वो लोग मैसेज कीजिए ग्रुप में, हम लोग मैथ्स के ग्रुप में आपको ऐड करते, जो भी मैथ्स की क्लास में ज्वाइन होना चाह रहे मैथ्स के ग्रुप में ऐड करते, जिनको साइंस की क्लास चाहिए उनको साइंस की ग्रुप में ऐड करते, देन वी हैव सम प्लान, हम आपको बताते हैं आगे चल करके, क्योंकि देखिए हम लोग जो है ना यहाँ पे कोचिंग ऐसे ही नहीं दे रहे, ठीक है? हमको एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे कि अभी हमारे इरशाद सर जो है, इरशाद ब्रो जो है ना, इन्हों जो है ऑलरेडी जो सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स दिए, इनको आइडिया है कैसा एलिमिनेट करना, कैसे ट्रिक्स अप्लाई करना, एंड वन मोर थिंग, इरशाद भाई जो है ना एनी टाइम कभी भी उन्होंने कौन सा भी टेस्ट दे ऑनलाइन में 90 मार्क्स का पेपर रहा तो 90/90 ही विल गेट, ओके? 80 मार्क्स का पेपर है तो 80/80 ही विल गेट। सो ऐसे एक्सपर्टीज हम लेके आना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ लिए क्लास दे दिए, नहीं, नथिंग लाइक दैट। Guys, one more qualification I want to give you here. It is 499. It is only for English. Maths is not included in this 499 rupees. उसके लिए अलग वेबिनार होगा, उसके लिए अलग प्रोसेस होगा। We just want to कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, अगर इंटरेस्टेड लोग ज्यादा है तो we can hire फैकल्टी, we can talk to the faculty, and वहाँ पे जब उसका फीस आपको डिसाइड होगा। This is only for English is sorted, इसलिए हम लोग इंग्लिश का एडमिशन लेना स्टार्ट करें। मैथ्स इज नॉट सॉर्टेड येट। आपके रिस्पॉन्स के साथ अगर आप लेना चाह रहे हैं सर हम वी आर रेडी टू पे, वी आर रेडी टू ज्वाइन कोचिंग बोले, तो आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से वी विल हायर एक्सपर्ट टीचर एंड उनसे आपको वेबिनार करवा के, उनसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करवा के ही हम आपको डेमो दे के हम आपको एडमिशंस लेंगे, राइट? वी आर नॉट येट कंफर्म्ड विद द मैथ्स। आप अगर रिस्पॉन्ड करें, अगर 5-6 लोग रिस्पॉन्ड करते, वी कैन नॉट डू कोचिंग, वी कैन नॉट गिव कोचिंग टू 5-6 मेंबर्स, राइट? So after students interest है, then we can then only we can take, okay? एंड अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस रहे तो वो लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में, अगर कोई सब्जेक्ट को लेकर के या फिर कुछ क्वेश्चंस रहे तो। सर पेपर 2 सोशल के लिए? नहीं, वही अभी बता रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके? सोशल पेपर का एज पर अभी तक तो हम लोग उसका कुछ प्लान नहीं करें, क्योंकि हम लोग अभी इंग्लिश, मैथमेटिक्स का है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये 3 सब्जेक्ट्स। अगर सोशल का भी चाहिए, जिनको जो भी सब्जेक्ट चाहिए एक बार आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, बेस्ड ऑन वोटिंग की भाई स्टूडेंट्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए वो कोर्स, तो हम लोग वो देंगे, ठीक है? ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको सोशल का चाहिए, अगर बहुत स्टूडेंट्स को चाहिए सोशल का, जस्ट ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए कि हमें मैथ्स भी चाहिए, सोशल भी चाहिए और अदर सब्जेक्ट भी, साइंस भी चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग ग्रुप्स में ऐड करेंगे, सबका सेपरेट हम लोग क्लासेस लेंगे, ठीक है? जिनको जो सब्जेक्ट में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि देखो अदर इंस्टीट्यूट्स का क्या रहता, वो लोग पूरे सब्जेक्ट्स मिला करके किसी 4,000 3,000 पे कर दो बोलते, और क्या है एंड ऑफ द डे आपको एक ही सब्जेक्ट समझ में आ रहा, रिमेनिंग समझ में नहीं आ रहे, तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी ना।
तो हम लोग वैसा नहीं है, एज पर हमारा क्या है, एक प्लान है, शेड्यूल है कि भाई जिसको जो सब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट समझ में आ रहा, वही स्टूडेंट वो सब्जेक्ट में ज्वाइन होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आप Yes, Mazhar want to add something to it. या श्योर ही कैन। सर टाइमिंग क्या रहेंगी क्लासेस की? We will give you. We will inform you. हेलो, आपको एडमिशन फॉर्म है ना, हम लोग टाइमिंग का शॉर्ट दिए, तो मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे भी जो लोग ज्यादा टाइम प्रेफर करेंगे, आपके कंटेंट के हिसाब से क्लासेस रहेंगे, नथिंग टू वरी। हम आपको ऑप्शन देंगे कि आपको कब चाहिए। अभी हमारे 60 मेंबर्स में 30 मेंबर्स से ज्यादा जो टाइम प्रेफर करेंगे ना, वही टाइम हम फॉलो करेंगे। एंड एट द एंड आपको टाइम स्लॉट कन्वीनियंट वेन्यू में आपको फिल करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि मॉर्निंग आपको कंफर्टेबल है या इवनिंग आपको कंफर्टेबल है, उसको आप एडमिशन फॉर्म के बेसिस पे हम लोग क्लासेस को सगाई करेंगे डेली। और कम्युनिटीज में आप चैट नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है उसका एक अलग गूगल फॉर्म आपको हम शाम तक भेज देंगे। उसके हिसाब से आप इंडिविजुअली हम मैथ्स में इंटरेस्टेड है या इंग्लिश में सोशल में इंटरेस्टेड है, आप गूगल फॉर्म फिलअप करिए। उसके हिसाब से हम सर्वे का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इतने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन मैथ, then we can group lead it. We will arrange a mathematics faculty and we will again arrange a webinar on math session. Okay. So हेलो if there सर, are any general questions regarding English, you can ask here in the chat box. Please unmute yourself. the voice is sub having disturbance. Irshad bro, mute One yourself. second, one second. Can somebody just Or Mazhar, you can speak with Irshad micro. one second. The crux of the knowledge is हम लोग आपको एक फॉर्म भेजेंगे, आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म में आपको कौन से सब्जेक्ट का कोचिंग होना है, यू जस्ट क्लिक इट। हम आपको फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म के हिसाब से वी विल रिस्पॉन्ड टू ये पॉसिबल है या कि नहीं। ठीक है, इंग्लिश इज कंफर्म, इंग्लिश की तो 100% इज कंफर्म, आप क्लासेस रहेंगे। बट अदर सब्जेक्ट के लिए जो भी पूछ रहे ना, उन लोगों के लिए हम ग्रुप्स में, जो भी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स है, उसमें हम एक फॉर्म भेजेंगे। ठीक है, फॉर्म पे जाके सर हम ये सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे टिक करिए। ठीक है, वहाँ पे आप वो फॉर्म भरे तो हमको समझ में आता कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, एनीथिंग इंग्लिश के रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी, वी विल बी क्लोजिंग इन 5 मिनट्स। Excuse me, sir. One more question. या ठीक है। सर अलग अलग पैकेजेस देने के बदले ओवरऑल कोर्स का पैकेज दीजिए ना सर, पूरे सब्जेक्ट्स का। बेसिकली ओवरऑल पैकेज देने से क्या है, लाइक एक्सपर्टीज डिल्यूट होने के चांसेस रहते हैं, राइट। ओवरऑल पैकेज मिला के सब 2000-2500 में बहुत सारे लोग ले रहे, बट उसका कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि फैकल्टी एक्सपर्ट लाने से कॉस्ट भी ज्यादा है ना। फैकल्टी अभी छोटा नॉर्मल फैकल्टी के लिए तो अभी इंग्लिश का तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कर चुकी हूँ पेमेंट। अब फिर मैथमेटिक्स बोल रहे हैं, फिर साइंस बोल रहे हैं, अलग अलग फिर वही होता ना सर। नहीं वही होता, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है ना वहाँ पे, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि भाई वो लोग मतलब कि वो लोग इंग्लिश ही क्लास चाहिए, और वो लोग इंग्लिश के लिए वो लोग 2000 पे करना वो लोग के लिए वर्थ नहीं है। तो जिनको जो क्लास चाहिए वही होगा। अभी हमारा क्या है कि इंग्लिश है, देन मैथमेटिक्स, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन सोशल स्टडीज। ओके, तो हम स्लोली आजकल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कौन से क्लासेस रहेंगे। मैथमेटिक्स का भी आपको डेमो मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, और आप लोग वो भी देख सकते हैं। फिर साइंस एंड टेक का भी हम लोग डेमो दे देंगे। Excuse me, sir. I have a question. Okay, thanks. जी Sir, in this 499 in English, both paper 1 and paper 2 English will cover, or only? Yes, paper on paper 2. both will cover. एंड रिकॉर्डिंग्स देखिए, रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं होते, क्लास लाइव रहेंगी। आपको जो भी रहेगा सेम एज यूजुअल ऐसी क्लास रहेंगी, 1 आवर की क्लास रहेंगी। मैक्स टू मैक्स 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास रहेंगी। 15 मिनट्स क्लास के जो भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन रहेंगे, ठीक है। सो आप लोग को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, और क्लासेस का भी जो है ना आप लोग को डेली लिंक आ जाएगा, सेपरेट ग्रुप बना देंगे, उसमें आपको ऑन टाइम ज्वाइन होना है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। सो यू हैव टू बी सीरियस एंड यू हैव टू ज्वाइन ऑन टाइम। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम वेट करो, आज वेट कर लिया 10 मिनट, बट नेक्स्ट टाइम से हम वेट नहीं करेंगे, ऑन टाइम क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो वी आर सो सीरियस, वी आर ऑलरेडी। अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती बिल्कुल ओके, लेकिन अगर मिस हो गई कभी क्लास तो एटलीस्ट पीडीएफ तो शेयर कीजिए ना सर, क्लास का जो पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर करेंगे क्लास के, जो भी आप लोग को क्लास में पढ़ाएंगे ना, प्रैक्टिस नोट्स, क्वेश्चंस पेपर्स, एवरीथिंग वी विल शेयर इन योर ग्रुप। यू कैन और जो प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करें, या यू कैन।
लेट मी ऐड समथिंग, जो भी आपको क्लास में पीडीएफ से ही जो क्लास हम एक्सप्लेन करेंगे ऑनलाइन, वो क्लास नोट्स आपको ग्रुप में शेयर किया। अगर कोई मिस कर दिए क्लास, तो वो पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ देख के आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट पेज पे कॉन्सेप्ट रहता है आपको, ठीक है, सेकंड पेज पे आपको क्वेश्चन रहते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे अगर वो टॉपिक्स अगर प्रीवियस आए तो, ठीक है। आप वो पीडीएफ देख के भी आपको यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो जो भी हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास होने के बाद, नेक्स्ट दिन क्लास हो जाने के बाद एक 15 मिनट्स और हमको आपको टाइम देंगे कि जो भी प्रीवियस क्लास मिस हो रहा है उसके लिए यू कैन क्लियर इट इन 15। उनकी गली का तो फ्री पे लेना है। अब थोड़ा बताया मगर इंग्लिश का 499 में करते तो पैसे बन रहे बच्चे, तो मैंने आशा बोली तुम लोग को पे करो, इन्हें पे करी, उन्हें पीडीएफ भेज देती है। If तो somebody is मैं not मैथ्स talking, को you पे कर, mute मैं them. मैथ्स को भेज देना। Mute them. Somebody is speaking. Sir, when will be the start the schedule of the classes? We will inform you, क्योंकि हम लोग की एडमिशन का प्रोसेस कंफर्म करके पेमेंट 60 प्लेस होने के वो उनको रिफंड वो करने के बाद वी विल सॉर्ट इट आउट विद इन 1 और 2 डेज में। वी विल ऐड यू इन ए ग्रुप, सेपरेट ग्रुप। सबसे हमको सर्वे भी लेना है कि उनको कौन सी टाइमिंग्स प्रिफरेबल है, कौन सा मॉर्निंग या इवनिंग, ये सब सॉर्ट आउट होने के बाद हमको फाइनल डिसीजन लेके आपको क्लास के टाइमिंग अनाउंस में विद इन 2-3 डेज में क्लासेस विल स्टार्ट। एक बार ये टेक्निकल इश्यूज पूरे सॉल्व होने के बाद वी विल inform you in the group. We'll keep Means class engaging time you. will be 1 hour or what's the time will Only be 1 hour. fixed? Only 1 hour. Only 1 hour. Only 1 hour. Yeah, not more than 1 hour, क्योंकि हमको ज्यादा टाइम इंग्लिश में ही फोकस करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी है ना, you have to focus other subject also, right? If anything related to English you can ask. We will be closing in 2 minutes. It's high time. It's been 2 hours. It's been 2 hours. एंड वन मोर एट द एंड, जो भी शुरू में बिगिनिंग ज्वाइन नहीं करे, मिस आउट हो गए, मे बी मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए और एक भी हम लोग क्लास अगर रखेंगे तो टुडे बाय ऑन आवर बिफोर 5 o'clock से पहले हम लोग रखेंगे वो लोग के लिए क्लास, एक और बार डेमो। अगर जो क्लासेस मिस हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर रिस्पॉन्स अगर आया कि मिस हो गया अगर कुछ, तो वी विल डू दैट। एंड अनदर थिंग, इफ पॉसिबल वी विल पोस्ट ऑन यूट्यूब दिस क्लास रिकॉर्डिंग जो भी है, एंड ये आप लोग को शेयर करेंगे दोबारा देखने के लिए, ठीक है। इफ पॉसिबल, यूट्यूब का अभी ऐसा कुछ नहीं है, देन वी विल सी द कितना उसका रिकॉर्डेड हुआ, होता नहीं होता, हो गया तो हम लोग आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर कोई अगर चाहिए क्लास तो आप लोग देखते हैं कितने मेंबर्स का है क्लास, विल टेक 1 more क्लास फॉर दिस, ओके, बाय टुडे। जो भी मिस कर दिए, बिकॉज 350 मेंबर्स रजिस्टर कर थे, 380 मेंबर्स, सो उन लोग के लिए एक और सेशन विल ऑर्गेनाइज टुडे और टुमारो। हम लोग उसका भी एक क्योंकि हम चाह रहे थे कि लाइक जो भी रजिस्टर करे वो लोग वेबिनार अटेंड करें। कि somebody might have missed it, हम लोग आज नहीं या कल विल इन्फॉर्म यू, क्योंकि कल रात शब कदर थी तो 10 o'clock अर्ली था, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल मिस्ड इट। वी अंडरस्टूड योर कंसर्न। will let you know the new joiner। जो भी पेमेंट करे वो लोग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वो जो मिस करे उन लोगों के लिए है। और मोस्टली प्रोबेबली यूट्यूब पे ये वीडियो रिकॉर्डेड आ जाता है आपको, देर यू कैन गेट कि क्या वेबिनार में हुआ था। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो विल कंडक्ट अनदर सेशन फॉर हु मिस्ड इट, राइट। आई थिंक वी आर गुड टू क्लोज ऑन एन लास्ट नोट। Do the payment as soon as possible, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से we are taking admissions. First 60 members is allowed, and we will let you know the class timings and details in within 1 or 2 days, and that will be in fresh group. We will be added in fresh group. Okay. Anyone having any questions? If you have any questions, you can ask me. Like we will be closing in 1 or 2 minutes. Thank you everyone for joining us. Thank you. You can leave now. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye.